I'll just show you इसका करना है can't do भी इसलिए वेबसाइट खोल के can't करना है. People should realize engineering होती क्या है मतलब. हाँ मैंने ये अपना हाँ सर ये न्यूयॉर्क वाला सर्वर है. Yes, yes. इसको मैं कर देता हूँ टर्न ऑफ. Yeah. ठीक है गया. Yes, yeah. So cloud like AWS, GCP, Azure are default choices for many companies, but there is one company that recently ditched them and are self-hosting it. All you can see the servers behind, right? And the company is Dukat. Like you all, I had several questions given how counterintuitive the move is. So to get answers and understand their journey, we have with us Subhash Chaudhary, founder and CTO of Dukat. Most of you would know him from his very famous Scalar podcast. If you have not seen, I would highly recommend you to watch it. It is fact. So, without digressing from the main topic, let's dive deep into Dukan's journey out of the cloud. It sounds very weird when I say it. But basically, first of all, thank you so much for doing this. It means our time. So, let's start with some brief about you and Dukan, just because I want all the viewers to understand the gravity, because the scale at which you operate and the decision you took, it's quite fascinating. So let's start with that, and I have a bunch of questions that Anshu. Of course. My name is Subhas. I handle technology at Dukan here. Before building Dukan, I have been a techie first. Before being techie, I was a marketer first. So I have 8 years experience in digital marketing. And after marketing, I left marketing and went into technology because technology fascinating. While I was doing marketing, I was more interested in building WordPress website than actually doing the marketing part. So I said, yeah, छोड़ ये सब जाने दे, मैं technology कर लेता हूँ. And then I started कि जो मैं कर रहा हूँ marketing में automate. And then things started like doing that. Yeah, उसके बाद होते फिर हमने एक software company बनाया. उसके बाद दुकान बनाया. Dukan is basically was born in pandemic, right? I think 3 years back when COVID happened. We saw that the shopkeepers, right? The shopkeepers were not able to reach to the customers. Abhi, the only people who were making money and were able to deal with the customers were the large companies. For example, Big Basket हो गया, आपका Blinkit हो गया, जो भी नाम था उस टाइम सबका Amazon हो गया. ये सब अपने कस्टमर के पास जा रहे थे. बट जो छोटा दुकानदार है, जो मेरे बाजू का दुकानदार है, वो नहीं जा पा रहा. So if shopkeeper cannot go to the customer, can the दुकान directly come to the customer? दुकान कस्टमर के पास क्यों नहीं आ सकता? हमेशा कस्टमर कोई दुकान पे क्यों जाना? That was the thought process, right? And then we saw कि यार companies like Jockey का व्हाट्सएप पे मैसेज आता था कि हमारा नया कलेक्शन आया देख लो. यार इतनी बड़ी कंपनी होगी उनको समझ में नहीं आ रहा कैसे करना है, तो छोटे दुकानदार को क्या ही होगा. वे सॉर्ट देखते मार्केट में क्या सॉल्यूशंस है. हमने शॉपिफाई देखा, शॉपिफाई, बिग डैडी. मोबाइल से तो ओपन भी नहीं हुआ वो, मतलब मोबाइल से मुझे स्टोर बनाना है हुआ भी नहीं. देन वी आर लाइक यार इंडिया में इतने सारे शॉपकीपर्स हैं, उनका मोबाइल, उनको तो डेस्कटॉप पता भी नहीं क्या होता है, यार उनको पता भी नहीं शॉपिफाई क्या होता है. एंड देन लुक एट द प्राइसिंग एंड एवरीथिंग, सर की बना के देखते हैं. एंड लाइक आई सेड, राइट, वी वर मी एंड सुमित, राइट, the founders were running a software company before. We were running a software company now called Ranks. तो हमारे पास टैलेंट था, स्किल सेट था, डिजाइन था, सब कुछ था. हमने बोला टीम को, भाई 2 ही तो लोग थे, भाई बना के दे. उन्होंने 24 घंटे लगा, ऐप बना के दिया पूरा. एंड ऐप बना के हमने, हमारे पास कम्युनिटी थी, जिस अभी भी हमारे पास कम्युनिटी है काफी अच्छी. उस टाइम पे हमारे पास मार्केटिंग अच्छी कम्युनिटी थी, हम लोग हल्ला मचाना अच्छे से आता है. उस टाइम पे भी हम लोगों ने एक छोटा सा मतलब 10 लोगों का कम्युनिटी बना रखा था. उसमें हमने डाल दिया, देख भाई हमने कुछ ऐप बनाया है. People started downloading it, and on the first day we got a call from someone who was selling mobile phones, used mobile phone, new mobile phones in a very remote, I think सूरत के आसपास कोई तो सिटी था, वहाँ पे बेच रहा था. He was like, सर मेरा दुकान ऑलमोस्ट 1 महीने से बंद था, आज मैंने 3 फोन बेचे, क्या ही बना दिया आप लोगों ने. We were like, है ये क्या हो रहा है. Then we said कि अच्छा. फिर हमने क्या किया, अपना जो ऐप था, राइट, जहाँ से स्टोर बनता है, उस ऐप के नीचे लिख दिया, दिस स्टोर इज मेड बाय दुकान, क्रिएट योर ओन हियर. एक बैनर डाल दिया बड़ा सा सबसे ऊपर. वो देख के लोगों ने डाउनलोड करना स्टार्ट किया. डाउनलोड होते हुए वी स्टार्टेड टू ट्रेंड. Within a month, we are almost $1 million on Play Store. About 1 million small or large stores were created in Dukan within a month of launch. And that gives you kind of a very भयानक growth आया था, right? So, भयानक is the right word. मतलब you are starting, मेरे पास जो पहला सर्वर था, right, that was literally running on a DigitalOcean का Droplet. मतलब वो 512 में RAM का Droplet 100 पर सब चला रहे थे. एंड उसको देखते देखते बढ़ना स्टार्ट हुआ. ऐसे एक सब फट गया, फिर अब क्या करेंगे, दूसरा लगाते हैं, अब क्या पढ़ेंगे, तीसरा लगाते हैं. फिर देखा नहीं यार ऐसे नहीं होगा, डेटाबेस को अलग करते हैं. हमारा डेटाबेस उसी पे था, तो डेटाबेस को अलग करते हैं, कोडिंग जो एक्चुअल एप्लीकेशन सर्वर है उसको अलग करते हैं. तो थोड़ा स्किल होता गया. एंड after that we raised lot of funds, we hired people. Then we started to build and scale for actual एक कंपनी बनाते हैं, राइट, बनाना शुरू किया. एंड विद दैट, राइट, वी सेड कि चलो हो गया. अभी इन्वेस्टर ने बोला जाओ AWS पे. ठीक है, जल्दी AWS पे. AWS वाले ने हमको $5,000 से कुछ तो 50 से 60 क्रेडिट दिया. हमने बोला वाह मजा आ गया, चलो AWS पे चलते हैं. तो सब कुछ छोड़ छाड़ हम चले गए AWS पे. एंड वहाँ पे जैसा होता है स्टार्टअप्स में, राइट, आप बनाते जाओगे, फिर भूल जाते हो आपने क्या बनाया था, फिर कल आके नया कुछ बनाओगे, परसों कुछ नया बनाओगे. देन वी स्टार्टेड टू सी यार प्राइस तो बढ़ता ही जा रहा है.
At one point, we were started to pay close to $80,000-$90,000 a month in AWS fees for a small startup like us. मतलब ठीक है, Google के लिए इतनी बड़ी पैसा नहीं है, एक यूनिकॉर्न के लिए it's not a big amount. पर मेरे लिए बहुत ज़्यादा पैसा था. Then I started to think यार इसको अगर मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा, and if I let it happen जैसा है वैसे ही चलता रहेगा, ये उससे ऊपर ही जाने वाला, कम नहीं होने वाला. Then I spoke with AWS team, GCP team, सबके साथ बात करूँ, सबका वही फंडा होता है, भाई आप स्पॉट ले लो, स्पॉट पे प्रोडक्शन चलाओ. मुझे स्पॉट पे प्रोडक्शन चलाना है तो भाई मैं साइट सर्वर पे क्यों ना चला लूँ. बात तो वही है. स्पॉट पे प्रोडक्शन चलाओ, नहीं तो आप 3 साल का कमिटमेंट एडवांस में कर दो, 3 साल का पैसा मुझे फंड दे दो, भाई इतना पैसा होती मेरे पास, मेरे पास आता है क्या, 3 साल का पैसा एडवांस में दे दो मेरे पास कि हाँ ठीक है, या तो फिर मुझे 3 साल का कमिट कर दो कि इतना खर्चा करोगे. दैट कमिटमेंट इज लाइक $5 million का कमिटमेंट कर दो मेरे को, आप 3 साल में आप खर्चा करोगे मेरे पास. भाई कहाँ से करूंगा, मेरे को धंधा चलाना है, पैसा बनाने तो है नहीं मार्केट में, मुझे धंधा चलाना है. देन आई स्टार्टेड टू रिड्यूस वर्कलोड, धीरे धीरे जितना हो सकता है वर्कलोड मैंने कम करना स्टार्ट किया वहां से. एंड सिंस आई एम अ मार्केटर, एंड बीइंग अ मार्केटर यू क्रिएट वर्डप्रेस वेबसाइट. वर्डप्रेस वेबसाइट बनाओगे तो आपको होस्टिंग समझ में आती है. तो आई एम द काइंड ऑफ गाय जिसको वेब होस्टिंग समझ में आती है, वर्डप्रेस समझ में आता है, शेयर होस्टिंग समझ में आती है, VPS समझ में आता है, डेडिकेटेड सर्वर समझ में आता है. व्हेन आई से सर्वर्स, मेरा पहला जॉब लिटरली सर्वर मैनेज ही करना था, राइट. इन माय फर्स्ट जॉब, जो मेरा पहला जॉब था, दैट वाज आई वाज लिटरली द गाय हु वाज हैंडलिंग सर्वर्स. इस कंपनी में दिस प्री क्लाउड है अराउंड बोल लो 2007 से लेकर 2012 तक का टाइम था. उस टाइम पे माय फर्स्ट जॉब वाज टू सपोर्ट सर्वर्स. उस कंपनी के पास 15 लाख सर्वर्स थे. मेरा काम था किसी तरह का पंखा चल रहा कम हो गया तो हमको अलर्ट आता था, वो कम क्यों हुआ वो देख एंड फिक्स करना. एंड दैट वाज वेरी स्मॉल थिंग. पंखा चलना से लेके हार्ड ड्राइव फेल हो गई, प्रोडक्शन सर्वर है, डेटाबेस सर्वर है, उसका हार्ड ड्राइव फेल हो गया, तो हाउ डू आई फिक्स इट, बिकॉज़ द सर्वर इज रनिंग इन डिग्रेडेड मोड. रेट रहेगा, रेट में से एक हार्ड ड्राइव फेल हो गया तो नाउ यू रन इन डिग्रेडेड मोड. तो हाउ डू यू फिक्स इट, हाउ डू यू गेट समवन सेंट ऑन साइट, वो बंदा उसमें से हार्ड ड्राइव निकाल के नया डालेगा. देन हाउ डू यू पुट दैट हार्ड ड्राइव बैक इनटू द पूल, सो जिससे कि आपका वापस चलना स्टार्ट हो गया. एंड विद दैट वी हैड ए काइंड ऑफ वी फिगर्ड आउट अ वे टू डू इट, जहां पे up to a continent failure I could handle. That was, we were running databases and servers for some of the most critical systems you can think of. Hospitals हो गए, banks हो गए, police stations हो गए, इन सब पे database हमारे पास सारे servers होते थे, जो हम लोग उसका बेसिकली यहाँ से मॉनिटर करते थे, देखते थे, बैकअप करते थे. बेसिकली रिलायबिलिटी हमारे ऊपर था. उसको उस टाइम हम लोग बिजनेस कॉन्टिन्यूटी बोलते थे. बिजनेस कॉन्टिन्यूटी तो हो गया कि नो मैटर व्हाट बिजनेस मेरा चलता रहेगा. दैट वाज द प्रोजेक्ट दैट वी हैड, बिजनेस कॉन्टिन्यूटी करना इनके सारे लोगों का. ईच कंपनीज हैड 10 सर्वर्स, 15 सर्वर्स, ऐसे हमारे पास 10,000 के पास 20,000 कंपनीज थी. तो दैट स्किल्स स्टार्ट टू ग्रो अप. एंड उस टाइम पे आई लर्न कि अगर एक हार्ड ड्राइव फेल हो गया तो क्या होगा, हार्ड ड्राइव छोड़ एक सर्वर फेल हो गया तो क्या होगा, सर्वर छोड़ो पूरा रैक फट गया तो क्या होगा, रैक छोड़ो पूरी बिल्डिंग में आग लगी तो क्या होगा, और बिल्डिंग छोड़ो पूरे सिटी में कुछ हो गया तो क्या होगा, वो पूरा कॉन्टिनेंट खत्म हो गया तो क्या होगा. एंड वी हैव टू प्लान अहेड कि ठीक है अगर हो गया तो मैं एक काम करता हूँ, ऑफ साइड बैकअप नाम का कुछ चीज हुआ करता था. ऑफ साइड बैकअप बेसिकली क्या हो गया कि ऑफ साइड बैकअप मतलब हो गया कि आप यूएस ईस्ट में हो, सिंगापुर में, या फिर किसी पूरा अलग ही कॉन्टिनेंट पे जाकर आपने रियल टाइम में रिप्लिकेट कर रखा है डेटा, और कुछ और फट गया तो यू कैन स्पिन अप योर सर्वर्स इन दैट डेटा सेंटर एंड VPN प्रॉक्सी कैसे भी कुछ भी मार के आप अपना यहाँ से वापस से अपना एटलीस्ट जो आपके क्रिटिकल सिस्टम से स्लो चलेगा, बहुत गंदा स्लो चलेगा. स्लो मतलब माउस घुमाओगे ऐसे तो माउस मुझे दिखता था घूमते हुए, इतना स्लो चलते थे सिस्टम्स, बिकॉज यू आर रनिंग नाउ ऑन ए 300 मिलीसेकंड का लेटेंसी पे, बट सिस्टम्स चलते थे. एंड दैट्स व्हाट वी डिड फॉर इयर्स. 7-8 साल मैंने वही किया था. लाइक मैंने ये किया, मेरा एक्सपीरियंस है, तो मेरे को फिर AWS पे क्यों रन आया, मुझे GCP पे क्यों रन, लेट मी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग व्हाट साइड. फिर मैंने जो मेरे पुरानी कॉन्टेक्ट्स थे होस्टिंग वाले, उन लोगों को बोला कि भाई मेरे को सर्विस चाहिए, दे दो. एंड सिंस देन एक सर्वर लिया, फिर 2 लिया, फिर 3 लिया, फिर 4 लिया. आज हमारे पास 100 के सर्विस है लेते गए. एंड द कॉस्ट मैं लिटरली बता रहा हूँ, you will see the prices. I can probably just show you. अब क्या उसमें आते सर प्राइस में राइट आखिरी में मस्त रिवील करेंगे, तब तक अपन लोगों को इंट्रिक करेंगे. No better. And not just the price. Not just the price. सब करता है. अरे फट. Yeah, not some questions. But yeah, so not just the price. I also saw the performance, right? For example, if you're running on GCP, अगर मैंने कोई भी वर्कलोड GCP से या फिर AWS हटा के bare metal पे डाल दिया, तो परफॉर्मेंस इंक्रीज भी इंस्टेंट सी. डेटाबेस वाले बंदे मेरे बोलते हैं कि अगर आप उसको ना EC2 से निकाल के मुझे इस पे डाल दो, आई एम लाइक भाई ये डेटाबेस छोड़ दे, ये मैं bare metal पे नहीं चलाएगा. देयर लाइक प्लीज चला के दे दो, कुछ होगा तो मैं देख लेगा, प्लीज चला के दे दो, बिकॉज उसका 3x परफॉर्मेंस ऐसी हो जाता है. ओके गिवन क्योंकि EC2 वगैरह मशीन्स के ऊपर मल्टीपल लेयर्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू जा रहा है, वो मतलब बेसिकली मल्टीपल लेयर्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन के थ्रू जा रहा है. सो इंस्टेड ऑफ 8 इफ यू रन इट ऑन bare metal, उसका डिफरेंस मोस्टली वर्चुअलाइजेशन लेयर तो ठीक है, फिर भी ठीक है. मोस्टली इज द नेटवर्क लेयर, राइट. फॉर एग्जांपल इन आवर केस, राइट, मेरे लिए सबसे ज्यादा हेवी चीज क्या है, इज द डिस्क IO. मेरे पास जो भी डेटा है, मुझे आई एम ई-कॉमर्स कंपनी, मेरा दो ही काम होता है. एक तो होता है स्टैटिक एसेट्स सर्व करना, जो आपका जावास्क्रिप्ट हो गया, इमेजेस हो गया, ये सब सीरियन कमाई करती है, क्लाउडफ्लाई करता है, बनी सीरियन पर 10 सीरियन यूज करते हैं, बेस्ड कौन कहाँ से आ रहा है, सीरियन कर लेती है. उसके अलावा क्या रहा कि मेरा स्टोर फ्रंट सर्व करना है. स्टोर फ्रंट इज व्हाट लिटरली डेटा, उसके अंदर कुछ नहीं. मैं इमेज स्ट्रीम नहीं कर रहा, मैं वीडियो स्ट्रीम नहीं कर रहा, मैं हॉटस्टार नहीं हूँ, मैं दुकान हूँ, दुकान में स्टोर फ्रंट होता है, स्टोर में प्रोडक्ट्स होते हैं. प्रोडक्ट कहाँ से आएगा, डेटाबेस से आएगा. देयर इज नो अदर वे. प्रोडक्ट डेटाबेस से ही आना. डेटाबेस ऑपरेशंस इज द ओनली थिंग दैट इज क्रिटिकल. एंड डेटाबेस में इफ आई आर रनिंग ऑन EC2 में जस्ट
सी की yes EC2 gives you a lot of reliability, but that reliability comes at expense of latency and IOPS. आपका उनका ने जो सिस्टम बनाया है, फॉर एग्जांपल द डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज सिस्टम दैट दे हैव, जो भी उन्होंने यूज किया जो भी है, उसमें तो इंश्योर कि 10 हार्ड ड्राइव भी फेल हो गए तब भी इसका डेटा लॉस ना हो, दे हैव टू रिप्लिकेट दैट एवरी स्मॉल बिट दैट यू राइटिंग across not just on multiple servers, multiple racks, multiple buildings, multiple AJ also duplicate कर. And when I have to read, they have to go through all that to just give you one byte of information. वो अगर मैंने डायरेक्टली एक NVMe में कनेक्ट कर दिया हार्ड ड्राइव पे, उससे डायरेक्टली सर्व कर रहा हूँ, मासिव इंप्रूवमेंट यू सी इन डिस्क आएगा. डेटाबेस को अगर डिस्क आगे फास्टर मिल रहा है तो उसको क्या चाहिए? सीपीयू कितना भी अच्छा, अगर उसका डिस्क स्लो है तो क्या ही कर लेगा वो. आज के डेट में सीपीयू हार्डली बोटलनेक एनीवेयर, मेमोरी हार्डली बोटलनेक होती है, मेमोरी इतना सस्ता है कि कोई पूछता नहीं है. सो वेट लाइक चला के देखते हैं, देन चलाते गए एंड फिर अभी तो मार्केट फटा हुआ है, तो हमने बोला कि यार तो प्रॉफिटेबल होना है नो मैटर व्हाट, राइट? एंड प्रॉफिटेबल होना है तो क्लाउड प्रोसेस योर वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉस्ट दैट वी हैव, तो करके देखते हैं. देन हमने करके देखा, 1 महीना देखा, 2 महीना देखा, 3 महीना देखा, देन वी सेड कि क्या हो सकता है, लेट्स से इफ आई रन इट, क्या हो सकता है, व्हाट इज द वर्स्ट दैट कैन हैपन, लेट्स प्रिपेयर फॉर दैट, एंड ऐसे ही चलाएंगे. एंड फिर सबसे मैसी चला रहे हैं मस्त. दिस इज द लीस्ट एनीवन वुड एक्सपेक्ट. जब आप बोलते हो कि पैसा बचाना है, सब लोग स्पॉट इंस्टेंसेस, रिजर्व इंस्टेंसेस, सबके दिमाग में वही चलता है. नो वन थिंक्स ऑफ मूविंग आउट ऑफ क्लॉक. सो बिफोर दैट, मतलब जस्ट बेसिकली वांटेड टू कमेंट यू ऑन, आपने बोला था कि आप एक जो वो डिजिटल मार्केटर है और आपको हल्ला बनाना आता है. आपकी वो ट्वीट पे जितना हल्ला बना है ना कि he ran out of cloud, like he moved out of cloud. It shows आपको बहुत अच्छे से आता है. To start with, let me ask you this one thing कि आपका कितना proportion, like when you said कि आपके पास अभी 100 सर्वर है, तो अभी ऐसी कौन सी सर्विसेज है जो आपकी क्लाउड में रन होती है और कौन सी ऑन प्रेम रन? मैं बोल सकता था कि आई एम कंप्लीटली आउट ऑफ क्लाउड, बट देन आई वुड बी टेक्निकली रॉन्ग बिकॉज मेरा डेटाबेस है क्लाउड. मेरा जो बैकअप है वो क्लाउड पे. सो ऑफ ऑल द डेटाबेसेस आई एम रनिंग ऑन प्रेम, उस डेटाबेस का जो रियल टाइम PITR बैकअप होता है, राइट, दैट बैकअप गोज टू क्लाउड. बिकॉज अगर मैं वो नहीं करूंगा तो देन आई हैव टू डिजाइन अराउंड दैट, एंड दैट इज बेसिकली बिल्डिंग माय ओन क्लाउड देन बेसिकली, राइट. दैट आई डोंट वांट टू प्लान फॉर कि ये रैक फेल हो गया तो क्या हो गया. आई डोंट वांट टू प्लान फॉर कि डेटा सेंटर फेल हो गया तो क्या हो गया. आई डोंट वांट टू प्लान कि कॉन्टिनेंट अगर कुछ तो किसी ने उस बिल्डिंग को आग लगा दी तो क्या होगा. आई डोंट वांट टू प्लान अराउंड दैट. उसके लिए मुझे फिर 2 रैक लेनी पड़ेंगे, 2 अलग एजी के अंदर सर्विस लेने पड़ेंगे, रिप्लिकेशन करना पड़ेगा. वो सब नहीं करना. मैंने क्या रखा है, सिंपल, मेरा ऑन प्रेम से मेरा जो क्लाउड है उस पर रियल टाइम में बैकअप होता है डेटाबेस का, जस्ट डेटाबेस का, बाकी सब ठीक है. डेटाबेस का बैकअप रियल टाइम में होता है. इफ एनीथिंग हैपेंस टू क्लाउड, टू माय डेटा सेंटर्स, आई डोंट हैव टू रीइन्वेंट द व्हील. मुझे खुद का क्लाउड नहीं बनाना वहाँ. मैं सिंपल सा एक कमांड डालूंगा, मेरा GCP पे, AWS पे सर्वर रियल टाइम में प्रोबेबली इनका, आई थिंक हमने जब लास्ट DR टेस्ट किया था तो 7 मिनट लगा था मेरे को. 7 मिनट में मेरा सर्वर वापस अपना रेडी हो जाता है विद द लेटेस्ट डेटा. एंड दैट 7 मिनट इज द डाउन टाइम दैट आई विल हैव. लेट्स से 10 मिनट पकड़ लो फ्रॉम द टाइम यू डिटेक्टेड, आधा घंटा पकड़ लो, चल ठीक है, आधा घंटा पकड़ लो, उससे ज्यादा तो नहीं लगेगा मेरे को. दैट इज द डाउन टाइम आई विल हैव इफ एट ऑल दैट इंटायर डेटा सेंटर इज नॉट एक्सेसिबल, ऑफ ऑल ऑफ माय सर्वर्स आर नॉट एक्सेसिबल. दैट इज द डाउन टाइम आई विल हैव. आई हैव एक्सेप्टेड टू लिव विद इट. मैंने सारे कस्टमर्स को बता रखा है कि भाई ऐसे ही है, हो सकता है किसी दिन फटेगा, किस दिन फटेगा मुझे नहीं पता, हो सकता है साल में 2 साल में एक बार आधे घंटे के लिए हमारा सिस्टम बंद होगा. दिस इज द रियलिटी. ये मैंने सारे एंटरप्राइज को बोल रखा है. एंड दे आर लाइक ठीक है यार, क्या ही कर सकते, कोई बात नहीं. क्लाउडफ्लेयर 5 घंटे बंद रहता है, सॉफ्टवेयर 6 घंटे बंद रहता है उसकी वजह से, एंड नोबडी गिव्स अ शिट अबाउट इट, राइट. जिंदगी है, सॉफ्टवेयर फटेगा आज नहीं करे, फटेगा, कोई बात. AWS से बंद होता है, AWS से बंद होता है, नहीं बंद होता है, AWS से बंद होता है, GCP बंद होती है, सब बंद होते हैं, बंद सबको बना है, मेरा भी बंद होगा. आई हैव एक्सेप्टेड दैट रियलिटी कि हाँ कभी ना कभी फटेगा. आई एम नॉट सेइंग कि आई विल हैव 100% अप टाइम, वो नहीं हो सकता. एटलीस्ट द सेटअप आई हैव, आई विल नहीं हो सकता. एंड माय कस्टमर्स आर ओके, आई एम गिविंग देम ए फैंटास्टिक प्राइस, अच्छा प्राइस देता हूँ, अच्छा परफॉर्मेंस देता हूँ, एंड दे आर लाइक ठीक है यार, क्या ही हो जाएगा. सही बात है. सो आपने काफी सही बात बताया कि आपका मेन डीबी स्टिल ऑन प्रेम, आप वहां से बैकअप क्लाउड पे स्ट्रीम करते हो. सो राइट नाउ द क्लाउड, मतलब आपका जो भी क्लाउड प्रोवाइडर है उसमें सिर्फ आपका डीबी का बैकअप जाता रहता है. तो इज दिस जो वो डीबी रेप्लिकेशन सेटअप किया है या फिर आपका पीरियोडिक, जो बेसिकली मैंने से कि आपका डेटा रियल टाइम में जा रहा है, तो आपने एग्जैक्टली क्या करते हैं? रियल टाइम एक सर्वर बना रखा है, उस पर आपका रियल टाइम में DDLP का चलता है, पोस्टग्रेस का DDLP का चलता है रियल टाइम में, बस हो गया. सिंपल टर्म्स अगर बोलूं मैं तो पोस्टग्रेस का DDLP का चलता है रियल टाइम में. दूसरा उनका जो स्टोरेज है GCS जो है, अभी हम लोग GCP पे है, तो GCS पहले AWS था, GCP है, तो GCS में हमारा PITR बैकअप होता है. पोस्टग्रेस का PITR बैकअप इज बेसिकली प्रायोरिटी बैकअप जो होता है क्वांटिटी टर्म रिकवरी के लिए. अगर कभी मुझे खुदा न खास्ता 2 महीने पुराना डेटा चाहिए, उसके लिए मैंने एक डेटा, मतलब जो लॉग्स होते हैं, जो स्ट्रीमिंग लॉग्स होते हैं, वहाँ पे GCS में जाए और आपका रीड रेप्लिका इसमें चलेगा. और तो फिर मतलब अगर कुछ ऊपर नीचे हो भी जाता तो आपके पास जो क्लाउड में रीड रेप्लिका है, हमारे साथ 7 मिनट पे आपने बोला कि आपका DR रिकवरी टाइम फॉर डेटाबेस 7 मिनट्स 20 मिनट. अभी देखो मेरा सारा का सारा जो वर्कलोड है, विच इज जो एप्लीकेशन दैट रन्स ऑन कुबरनेटिस. मुझे एक
क्लस्टर चाहिए स्पिन अप करने के लिए, एक क्लस्टर स्पिन करने में जितना भी टाइम लगेगा, दैट इज द टाइम, जो 7-8 10 मिनट जो भी मैंने बोला है, दैट टाइम इज टू जीसीपी या AWS, जिसको भी एक क्लस्टर स्पिन अप करने के लिए जितना टाइम चाहिए उतना टाइम चाहिए। देन आई हैव टू अप्लाई ऑल द YMLs, मैंने YMLs डाले, सब कुछ एज इट इज है, उसको बस डेटाबेस चाहिए, जो रेप्लिका है उसको मास्टर प्रमोट करने के लिए कमांड रन करना पड़ता है, यू रन दैट कमांड, बस हो गया, एंड दैट इज एज सिंपल एज कैन बी, राइट? यही करूंगा। सुपर्ब है, सुपर्ब है। एंड आपका एक और मैंने ट्वीट देखा था, उसी में उसे किसी ने पूछा था कि आपकी इंजीनियरिंग टीम, तो आपकी जो डेवऑप्स एसआरई टीम कितनी बड़ी है, और आपने बहुत सही चीज लिखी थी कि आपके डेवऑप्स एसआरई टीम में 2 इंटर्न, एक एफटी और एक आप हो। इतने छोटे इसमें, लाइक टू बी ऑनेस्ट, एक मतलब आपके स्केल पे ऑपरेट करने वाली कंपनी के डेवऑप्स एसआरई टीम में भी 6 से 7 इंजीनियर्स होंगे, फुल टाइम इंजीनियर्स, जस्ट वो भी वो लोग जो क्लाउड पे, एंड आई एम नॉट इवन सेइंग कि उनका ऑन प्रेम इंफ्रा है। क्या है मैजिक सॉस? यार आप बताओ कि चाहिए क्यों बंदे, आप बताओ मेरे को बंदे चाहिए क्यों? सर्वर आप ऐसा तो है नहीं कि रोज बंद होता है, रोज किसी को जाकर उसमें वही बात। पंखा बंद करना है या हार्ड ड्राइव चेंज करना है, ऐसा तो होता नहीं। आज के सर्वर्स इज नॉट सी, अभी भी लोग को बेयर मेटल या फिर डेडिकेटेड सर्वर समझ के 20 साल पुरानी चीजें याद आती है कि हार्ड ड्राइव फेल होते हैं रोज के रोज, ऐसा नहीं होता है। एनवीएमई डिस्क जो है वो काफी स्टेबल है, एंड व्हेन यू कंपेयर कि एक सर्वर के अंदर आपने 2 डिस्क डाल दिया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिस्क में से एक हार्ड ड्राइव फेल हो जाएगा, आपका स्टार्टअप फेल हो जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। कि अगर आपने, मैंने लिटरली, मेरा एक सर्वर है, ये सर्वर मैंने जिस दिन मैंने कंपनी स्टार्ट की थी उससे 2 या 3 महीने बाद खरीदा था, उसमें 2 हार्ड ड्राइव्स हैं, इस सर्वर है 2 हार्ड ड्राइव्स एनवीएमई के 6.5 TB वाले। मैं बता रहा हूँ मेरा कंपनी का बंद होने का प्रोबेबिलिटी उससे ज्यादा है वो हार्ड ड्राइव फेल होने। एंड नॉट जस्ट मी, ये इस लेन में कम से कम 150 स्टार्टअप है एचएसआर में, एंड दिस इज अ फैक्ट फॉर ऑल ऑफ देम, आई कैन चैलेंज देम। प्रोबेबिलिटी देख लो स्टार्टअप का बंद होने का, नहीं होते। हाँ, कभी नसीब खराब हो तो कुछ भी हो सकता है, अलग चीज है, बट हार्ड ड्राइव फेल नहीं होते। हार्ड ड्राइव वाला और क्या फेल होने वाला, उसमें रह गया सर्वर फेल होगा। कुबरनेटिस चलाता हूं लाइक सेट, राइट? मेरे पास क्लस्टर है, 5 नोड है, 10 नोड है, जितने भी नोड है, एक नोड फट भी गया, क्या हो गया? वो फेल ओवर तो कुबरनेटिस हैंडल कर ही रखता है ना, वो तो मेरा काम नहीं है। 10 नोड में से एक नोड फट गया तो क्या हो गया? कुछ नहीं। 2 नोड फट गया, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। 3 नोड फट गया, क्या होगा? अब एक ही दिन में अगर 5 नोड फट भी गया तो उस दिन मेरा बहुत ही अनलकी डे है। उस दिन मैं क्या करूंगा? जीसीपी पे जाकर चालू करूंगा सब। 2 दिन मैं जीसीपी पे चलाऊंगा। 2 दिन में मेरा कितना बिल आएगा? 2 दिन में कितना बिल आएगा? मैं तो नहीं, कितना ही आएगा इनका बिल? नहीं आएगा। Given that you already have your infrastructure as a code sorted out with Kubernetes, तो आपके लिए तो पूरा रिप्लायबिलिटी तो आसानी से हो जाएगा। मतलब अगर एक कुछ तो ये बहुत ही पूरा हो जाता है, हाँ, तो आपका मतलब एंटायरली इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड आपका, और मतलब आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में तो गिवन दैट यू आर बेयर मेटल, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड में तो कोई मैनेज सर्विस भी नहीं है कि आपको जैसे कोई क्यू स्पिन अप करनी है या कोई या फिर कोई वो प्रोप्राइटरी टूल्स करना है। आपको तो बस बेयर मेटल चाहिए, है ना? मैं बताता हूँ। सो मेरे को डेटाबेस चाहिए पोस्टग्रेस, जो मेरा सेल्फ पोस्टग्रेस है, वो जिसका रेप्लिका मेरे पास पहले से है। दूसरा मेरे को क्यूइंग के लिए हम RabbitMQ यूज करते हैं, वो मेरा पार्ट ऑफ कुबरनेटिस चलता है। RabbitMQ मेरा पार्ट ऑफ कुबरनेटिस चलता है। परफेक्ट, वो भी सॉर्टेड हो गया फिर, क्योंकि कुबरनेटिस का एक पार्ट हो गया। करेक्ट। देन मेरे जो वर्कलोड्स है, उसमें वर्कलोड्स में आपके पास क्या होता है? एप्लीकेशन सर्वर्स होता है, विच इज योर API है। मेरे पास जो भी सर्विसेज है उसके, आई थिंक योर बैकग्राउंड वर्कर्स कनेक्ट करेंगे मेरे RabbitMQ को, सबके सब कुबरनेटिस में अप्लाई करना चाहिए तो बस हो गया। मैं चाहिए तो अभी मैं आपका आपको दिखाना है मोनोलिथ है यार, इसको जो भी बोलना है बोल दो, मैं पूरा चाहिए तो अभी आपको सामने दिखा देता हूँ कि क्या है। जस्ट शेयर माय स्क्रीन एंड सो आई विल जस्ट शेयर माय स्क्रीन। आई विल शो यू द फर्स्ट, मेरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर कोड का जो डिपो है वो दिखा दो। देन उसके बाद आपको मैं उसका कुबरनेटिस भी दिखा दूंगा कैसे है, राइट? सो ये मेरा पूरा फोल्डर है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड का। ठीक, इसमें आप देखोगे तो फोल्डर वाइज आई हैव जस्ट ब्रेकन डाउन। इसके कमिट्स पे मत जाओ, कमिट मैसेज हम लोग बहुत ज्यादा बेकार लिखते हैं, डोंट बंद आउट। सो आई हैव राइट, सो व्हाट आई हैव इज एक एज का फोल्डर हो गया, हाँ, एक मेरा ऑप्टिमस का फोल्डर। एजिस और सीडी है, एजिस और सीडी है, इस काइंड ऑफ एज कंप्यूटिंग वाला जो है, नॉट लिटरली काइंड ऑफ एज कंप्यूटिंग वाला। हाँ, करेक्ट। देन इंटरप्राइज अपना ये जो देखोगे तो दिस इज माय सारे YML सारे सर्विसेज। ऑथ आपका ऑथ सर्विस हो गया, आई विल गो इनसाइड ऑथ सर्विस फॉर एग्जांपल। ऑथ के अंदर आपके पास दिस इज योर ऑथ, बस बुलाते हो ऑथ सर्विस को। मेरा जो बैकएंड का बंदा था, दीपेन करके बंदा था बैकएंड का, तो ऑप्टिमस प्राइम वाज हिज फेवरेट, ये क्या कहते हैं, फेवरेट कैरेक्टर, एंड ही बिल्ड द एंटायर बैकएंड। तो उसी को बोला कि भाई तेरे को जो नाम रखना रख ले, तो ही पुट द नेम ऑप्टिमस। मेरे एंटायर बैकएंड का नाम ऑप्टिमस उसमें रखा हुआ है। ऐसे ही जो मेरा फ्रंट एंड है, तो फ्रंट एंड गाय इज लाइक डोटा प्लेयर, ही इज लाइक अतुल एंड मनीष करके बंदे हैं। दे प्ले डोटा अ लॉट। उन्होंने अपना नाम सेप्टर रखा है। सेप्टर इज आई डोंट नो इन डोटा। बच्चे लोग करते रहते, ठीक है, मेरा क्या जाता है, करने दो, लेट देम बी हैप्पी। तो ये मेरा देखोगे तो सी दिस इज योर इमेज। ये उसका पाइथन मैनेज रन सर्वर का कमांड हो गया, रन सर्वर डन। सीक्रेट्स हो गया जो हम पुल कर लेते हैं जहाँ से भी होता है। देन साइग्नोस की कंपनी है, दे आर इन डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग एंड लॉगिंग, कुबरनेटिस के लिए बहुत अच्छा करते हैं वो लोग। तो साइग्नोस आई एम यूजिंग फॉर मॉनिटरिंग, तो उसका एक एंड पॉइंट मिलेगा। देन हेल्थ 6 है, उसके सिंपल हेल्थ 6 है। देन सर्विस है, इसके ये उसकी स्टैट्स नॉट सर्विसेज है, नहीं, हाँ। देन इसकी बस उसकी सर्विसेज सही आपको ऑथ हो गया। ऐसी जैसे मैं पूरा स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। सो ऑथ इज वन मेजर सर्विस फॉर अस। देन वी हैव
अपना फाइल्स, जो बेसिकली फाइल, बिकॉज ई कॉमर्स में फाइल्स बहुत ज़्यादा होता है, यू हैव टू प्ले विद लॉट ऑफ इमेजेस, तो फाइल्स के लिए हमने अलग से सर्विस बना रखी है। देन आपके पास मार्स, आपका जो हमारा इंटरनल डैशबोर्ड है उसकी सर्विस है। Metafields is a different service. Then order, major service. Order is basically all the order management that happens, right? Cart हो गया, order management हो गया from both seller side and buyer side. That is managed by order service. Payments हो गया. Payments is again is a very crucial part for us. Payments आपका Indian payments, outside of India payment. जितने पेमेंट होता है, whenever you do a order placement, payments उसमें होना ही होना है. This service talks to your different companies like Razorpay, Cashfree, Stripe, 192 payment gateway के साथ भी work. So this service talks with all of them and have exposed a simple API to our rest of services. ऐसा. Search is a major part for us. Search हमारे, हाँ, search is a major part for us. Then आपका server side events, जहाँ पे सारे events manage करते हैं हम लोग. For example, every single time, right? If I get 3 million users on the website in a day, तो हर एक user session का आपका देखोगे तो हर एक चीज का कितना क्लिक किया, कहाँ पे नहीं क्लिक किया, that events I have clicked on for. Hello? हाँ, फॉर माई ओन एनालिटिक्स एज वेल, मुझे फेसबुक को भेजना होता है, मुझे मोंग न्यूज को भेजना होता है, 500 सर्विसेज उनको हमको अपने इवेंट्स भेजने होता है, तो उसके लिए हमने अलग से सर्विस बना रखी है। उसका स्किल बहुत ज्यादा पागलपन वाला स्किल होता है, तो उसको हमने अलग से रख रखा है। देन यू हैव योर स्टोर। स्टोर इज बेसिकली स्टोर का जो बेसिक हो गया कि स्टोर कौन है, कितना है, किसका है, स्टोर का नॉर्मल मेटा इन्फॉर्मेशन क्या है, कितने ऑर्डर्स आए हैं, कितनी और एनालिटिक्स, वो सब हो गया। देन एक सुपर एडमिन, हमारा इंटरनल जेंगो का सुपर एडमिन है, बस इतना ही सर्विसेज है। कोर सर्विस इतना ही है। देन ईच सर्विसेज के अंदर उसके वर्कर्स, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक ऑर्डर के अंदर देखोगे तो ऑर्डर का आपका हो जाएगा एक आपका, ये ऑर्डर की बायर सर्विस है जो बायर को हैंडल करती है, एक ऑर्डर की सेलर सर्विस होती है जो सेलर साइड पे हैंडल करती है। वी आर सिंस वी आर टू साइडेड मार्केटप्लेस। देन यू हैव योर उसके वर्कर्स, बैकग्राउंड वर्कर्स। ऑर्डर के बैकग्राउंड वर्कर्स में क्या होगा, ऑर्डर आएगा तो व्हाट्सएप जाना चाहिए, ईमेल जाना चाहिए, ओटीपी जाना चाहिए, ऑल दोस काइंड ऑफ स्टफ, नोटिफिकेशंस हो गए, ऑल दोस आर हैंडल्ड बाय बैकग्राउंड, जो मैंने बोला प्रायोरिटी वर्कर्स, तो हाई प्रायोरिटी, मीडियम प्रायोरिटी। करेक्ट। हाई प्रायोरिटी मतलब जो ऑर्डर का ओटीपी मतलब नोटिफिकेशन आएगा या फिर ओटीपी आएगा, दैट विल बी हाई प्रायोरिटी वाला हाई प्रायोरिटी में डाल दो, मार्केटिंग वाले लो प्रायोरिटी में डाल दो। करेक्ट। एंड सिंपल सैलरी चला रहे थे, सिंपल सैलरी चला रहे हैं। हाँ भाई, तो ये वाला है। हाँ, ऑप्टिमस, ये शिपमेंट, फॉर एग्जांपल ये शिपमेंट चलता है, शिपमेंट भी हाई प्रायोरिटी है। जैसे ये पेमेंट हो गया, वर्कर पेमेंट्स का, ये ऑर्डर का पेमेंट हो गया, तो पेमेंट शुड बी मार्किंग योर डेटाबेस की ऑर्डर पेमेंट हो गया। सब्सक्रिप्शन हो गया कि हर एक ऑर्डर के बाद उसका जो एक सब्सक्रिप्शन बनता है उसका स्टेटस अपडेट होना चाहिए फ्रॉम थर्ड पार्टीज। फॉर एग्जांपल ऑर्डर किसी ने डिलीवरी से शिप किया, वी हैव टू कॉल डिलीवरी एवरी कपल ऑफ मिनट्स, कपल ऑफ आवर्स टू अंडरस्टैंड कि ऑर्डर का स्टेटस क्या है, बिकॉज ऐसा कुछ वेबुक तो हमको देते नहीं वो लोग, तो वी हैव टू जस्ट लाइक दैट। Same way, so every service have 3 or 4 different YMLs. One is the actual service का APIs होता है, then second is your background workers. उसके बाद मॉनिटरिंग के लिए कुछ करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मॉनिटरिंग के लिए कुछ डाल रखा है इन लोगों ने, देखोगे तो कुछ तो मॉनिटरिंग के लिए लोग फ्लावर्स है, हाँ वो जो बर्ड्स का वो भी स्टैंडर्ड ही है। हाँ, तो मॉनिटरिंग के लिए डाल रखा है। सो दैट वे सेम वे, ऑर्डर के बाद मैं पेमेंट पे जाऊंगा तो लेट्स से इफ आई गो टू पेमेंट्स में भी सेम ही रहेगा। I have API servers and background workers, right? सबका स्टैंडर्ड प्रोसेस है, सबका सेम है। Nice. सबका स्टैंडर्ड है। And then if I show you, right, if I show you that this is your infrastructure as a code. So for example in this repo I only have infrastructure YAMLs, nothing else. Actual code रहेगा तो वो कहीं और रहेगा। मैं for example if I code में लिखूंगा seller, हाँ, ये for example मेरा seller का डैशबोर्ड है। इस डैशबोर्ड में देखोगे तो सिंपल सा हमने क्या डाल रखा है, CI/CD डेस्क का अगर देखोगे तो what we do is अच्छा वो भी आपको GitHub CI/CD से सब यहीं से। नाइस। हाँ, so I will show you the YAML file also. I will show you the YAML. For example, anytime you push a change into the so our main branch is Dukaan, not the master. That is protected. Only can be merged through a actual merge. आप डायरेक्टली पुश नहीं कर सकते। तो बाकी जो भी बंदे को चेंजेस करना होता है, चेंजेस करके मास्टर मर्ज करते हैं। एंड मर्ज करने के बाद सिंपल डॉकर का देखोगे तो डॉकर बिल्ड करता हूँ एक फाइंड एंड रिप्लेस करके, तो आपकी कमिट आईडी है, उस कमिट की जो कमिट आईडी है वो निकालता हूँ। उस कमिट आईडी से डॉकर का एक इमेज बनाता हूँ। देख रहे हो, because you have to bump up the version ना। हाँ exactly, you need to bump up the version. Yes. So अभी वर्जन में बम्प अप करने के लिए कहाँ से मैं मेंटेन करूँ कि वर्जन है ये दो है, तो मैं क्या करता हूँ, मेरा जो कमिट बेस्ट है। यस, कमिट हैश का जो लास्ट 4 कैरेक्टर है वो लास्ट 4 कैरेक्टर ले लेता हूँ, बस हो गया। देन डॉकर लॉगिन किया, डॉकर इमेज बनाया, डॉकर पे पुश किया। देन यहाँ से देखोगे तो डॉकर से पुश करने के बाद एक YML फाइल बना के, वो YML फाइल में जो इंफ्रा फोल्डर था, इंफ्रा फोल्डर पुश कर दिया। एंड इंफ्रा फोल्डर को मेरा जो CI/CD है अपना Argo CD यूज करते हैं, और CI/CD मैं लॉगिन करके दिखाता हूँ। CI/CD के लिए Argo CD यूज करते हैं, Argo CD उसको रीड कर लेगा एंड कुबरनेटिस पे जाकर डिप्लॉय कर देगा। नाइस। अभी दिस वे एक बार पता ना सर, वहां से आपके इंफ्रा पे कैसे दिखता है? वही तो बोला ये आप, वो भी पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ मैं आपको। सो याद है, ये समझ में आया? ये पार्ट समझ में आया आपको कि आपने जो भी चेंजेस किया उसका पहले एक डॉकर इमेज बना, वो डॉकर इमेज टीम दुकान इंफ्रा फोल्डर में गया, दिख गया आपको?
यस अभी इंफ्रा फोल्डर में जाते हैं, टीम दुकान, एज में रहेगा सेलर जंप। ये देखो, ये 4 घंटे पहले किसी ने पुश किया था, करेक्ट? करेक्ट। हाँ इसमें Okay. इसका अगर आप चेंज हिस्ट्री देखोगे ना, तो लिटरली इसमें एक ही फाइल, एक ही चीज चेंज हुई रहेगी, कि इसका जो इसका जो इमेज का नाम है ना, बस जो यहाँ लास्ट देख रहे हो ना, ये लास्ट वाला वो चेंज हो रहा है, वो आखिरी वाला चेंज हो रहा है, 5-6 कैरेक्टर्स जो आपने उठाए वो। ये बस ये चेंज हो रहा है, करेक्ट? करेक्ट। यस। अभी ये जो फोल्डर है, ये जो फोल्डर है मेरा, हम्म। ये जो फोल्डर है ना, इसका जो फोल्डर है, दिस इज मॉनिटर्ड बाय आर्गो। आर्गो इज सीडी प्लेटफॉर्म। तो सीआईसीडी में 2 चीजें होती है, एक सीआई होता है, एक सीडी होता है, करेक्ट? यस यस। सीआई जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट, जहाँ पे आपकी इमेजेस वगैरह बन के टेस्ट केस पास होते हैं, सब कुछ होता है, करेक्ट? एंड सीडी इज जहाँ से डिप्लॉयमेंट होता है। तो गिटहब को हम यूज करते हैं एज ए सीआई प्लेटफॉर्म, जहाँ पे मेरा सीआई होता है। सीआई मतलब हो गया जहाँ पे मैं इमेज बनाने तक का प्रोसेस करता हूँ, और इमेज में भेज देता हूँ डॉकर हब। डिप्लॉयमेंट, अभी मेरा जो डिप्लॉयमेंट, फॉर एग्जांपल एज वाला डिप्लॉयमेंट जो सेलर वेब हो गया, सेलर वेब मेरे ऑलमोस्ट 10 या 12 लोकेशंस पे अलग अलग डिप्लॉय होता है। यस। तो गिटहब को मैं बोलूँ कि 10 अलग अलग कुबरनेटिस क्लस्टर में जाकर लॉग इन कर, वहाँ पे डिप्लॉय कर, नॉट ए गुड वे टू डू इट। नॉट अ गुड वे। करेक्ट। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने आर्गो में क्या किया, लॉग इन, हाँ, आर्गो में क्या किया, मैंने सारे लोकेशंस बना रखे हैं, सारे जितने भी मेरे एजेस हैं, ऑल ऑफ देम आर रनिंग कुबरनेटिस। यस। सबको मैंने आर्गो में कनेक्ट कर रखा है। सबको वो आर्गो से वो सीधा डॉक्टर अब से जाके फेच करके आके डिप्लॉय कर। नहीं, आर्गो हब जो है वो, मैं आपको पूरा एप्लीकेशन दिखाता हूँ, समझ में मैं एप्लीकेशन दिखाता हूँ इसका, तो समझ में आएगा। तो लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक दिस फोल्डर, लेट्स टेक दिस एप्लीकेशन, क्लिक ऑन डिटेल्स। ये क्या कर रहा है, देखो ये क्या कर रहा है, ये आपका ये वाला लाइन पढ़ो, इंफ्रा का गिट पे हेड Correct. पे। हाँ करेक्ट। और इसका पाथ क्या है, पाथ है, करेक्ट? एज का। करेक्ट। सो ये वाला जो फोल्डर है मेरा, उसके अंदर जाके एज में गया। हाँ, ये फोल्डर को मॉनिटर करता है 24/7। इस फोल्डर को मॉनिटर करता है। व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन दिस फोल्डर, वो ट्रिगर होता है। ओके। ये ट्रिगर अपने आप ट्रिगर हो जाता है। ये ट्रिगर होकर क्या, एंड इसमें अगर देखोगे तो इसका ये तो सोर्स हो गया, दिस इज योर सोर्स, करेक्ट? यस। देखो यू आर द सोर्स। नाउ इसका टारगेट देखो, टारगेट क्या रहेगा, इसका टारगेट दिखाता है, उसका टारगेट कहाँ पे है, तो भाई हाँ, वो टारगेट रिविजन रिट्रो ऑप्शंस। वो देख रहा हूँ, एक नीचे मैं रीच करूँगा तो दिख जाएगा, रीच करूँगा तो दिख जाएगा। ये ना, ये है ना, ये आपको टारगेट है, ये कहीं पे और इसका टारगेट था। हाँ, ये इसमें दिखा नहीं रहा क्या, इंसर्ट में दिख जाएगा। एनीवे इसका टारगेट इज द क्लस्टर, दिस क्लस्टर, ये जो है ना, K3 pub edge vulture edge, ये है ना आपके K3 pub edge vulture edge जो है ना, दिस इज द टारगेट फॉर दैट। ये एक क्वांटिटी का क्लस्टर है। यहाँ पे देखोगे तो 4 घंटे पहले यहाँ पे दिख रहा है, 4 घंटे पहले सेलर वेब का अपडेट आया था। हाँ यस। एंड इट वाज सिंक्ड, ओके। इसने क्या किया, इस पे जितने भी, और इसमें इस पे डिप्लॉयमेंट्स दिखाऊंगा, राइट? लेट्स गो टू डिप्लॉयमेंट्स, इसका अगर डिप्लॉयमेंट सब दिखाऊंगा मैं। ये सारी सर्विसेज चलती है इस पे, वो हियर, ये सारी सर्विसेज चलती है हर एक लोकेशन पे। सेलर वेब ये वाला रहा, ये दिखा रहा आपको 4 घंटे पहले अपडेट हुआ था। यस 4 घंटे। इसने क्या किया, तीन पॉड उसके अलग से बना के डाल दी, बस। ऐसे मेरे पास जितने लोकेशन है, हर एक लोकेशन पे ये सेम फोल्डर मॉनिटर होती है। जैसे ही मैंने कुछ भी चेंज किया तो अपने आप उसने एक गिटहब ने इमेज बनाया, आर्गो ने उस इमेज को हर एक लोकेशन पे जाके डिप्लॉय कर दिया। तो मैंने मुझे कुछ करना पर अब इस बिग एक्टिंग एज योर विजिटर सेंटर इमेज रिपोजिटरी, वहां से आप फेच करके, और वो मॉनिटर कर रहा है आर्गो सीडी, फिर वहां से उठा के जो भी आपने दिखा दो, मतलब जो आपका वो कुबरनेटिस का स्टैंडर्ड डिप्लॉयमेंट प्रोसीजर, हॉरिजॉन्टल क्वाड ऑटो स्केलर होगा, जिसको स्केल अप स्केल डाउन होता होगा, समथिंग लाइक दैट। बस मोस्टली उसके बाद चल ही जाता है सब कुछ, उसके बाद आराम से चल गया। एंड ये सारे इसके ऐसे ही हैं। तो एंड देखोगे जैसे डायरेक्ट लोकेशन के लिए हमने एक एप्लीकेशन बना रखा है, ईच लोकेशन विल हैव अपना, देखोगे तो प्लेसेस बना रखे हैं। वी कुड सी मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर। हाँ, तो वैसा आपका इवन एम्स्टर्डम। हाँ, मैं एम्स्टर्डम का आपको जब फेल ओवर बताएगा तो मैं फेल ओवर करके दिखाऊंगा एक्चुअल में। एंड लाइव प्रोडक्ट्स एंटरप्राइज वेबसाइट पे फेल ओवर करके दिखाऊंगा, रियल टाइम में देखने आ सकते हो। आई विल पुल वन ऑफ द प्लग्स ऑफ अ सर्वर and then you will see traffic कैसे route होता है real time में, जब when we talk about failover उस time पे करेंगे। But that was the entire architecture, right? So on the backend side I had a couple of those services. On the front end side, आपका dashboard हो गया, which is a service. Then we have a storefront, which is basically the storefront जहाँ से आप render करते हो, right? जहाँ से store render होता है, that is a service. And then the domain handler, right? For example, we have tens of thousands of domains. वो domain handle करने के लिए सर्विस, स्पेशल सर्विस चाहिए, domain वही जो हम एक्सटेंशन पर डालते हैं। Then हर एक इस पे आपके पास कंप्यूटर होता है ना, स्टोरेज होता है। कंप्यूटर इज बेसिकली आपका ये हो गया, स्टोरेज मतलब जहाँ पे आप स्टोरेज का डेटा स्टोर करके रखते हो। एंड विद दैट एवरीथिंग वर्क्स परफेक्टली फाइन। अभी ये मुझे बताओ, ये करने के लिए मुझे 200 बंदे क्यों चाहिए? यू एक्सप्लेन मी। सही बात है।
ये सेटअप जो है लिटरली मैंने 1.5 साल पहले किया था, उसके बाद कुछ नहीं किया उस पर, लिटरली कुछ नहीं किया। चल रहा है तो चल रहा है, मतलब जब बंद होगा, अभी इसमें क्या ही बंद होगा बताओ मेरे को, इसमें क्या ऐसा हो जाएगा जो बंद हो जाएगा? मैं वो बताता हूँ, वन एग्जाम्पल, एट प्राइवेटली वन ऑफ माई पास्ट एम्प्लॉयर्स, हमारा एक CI/CD हमने सेटअप किया था, नहीं एक्चुअली उन लोगों ने सेटअप किया था बिफोर आई ज्वाइन। मेरे ज्वाइन करने तक और मेरे छोड़ने तक चल रहा है, चलने तो क्यों चेंज कर रहे हैं? क्योंकि कभी अड्डा है नहीं, इंफ्रा भी ऑलमोस्ट सेल्फ सस्टेन हो जाता है, कितने चेंज कर रहा है? एंड इफ योर टीम नोस कुबरनेटिस, फिर तो क्या, और नहीं भी चाहते तो भी एक्सिस्टिंग तो कॉपी पे, सब पे एक बैकग्राउंड वर्कर, एक एपीएस, जैसे आपने एकदम परफेक्टली बताया, अगर आपके डेटा पे सॉर्टेड है तो बाकी सब में यही क्या बैकग्राउंड वर्कर होते हैं, नहीं, ठीक है ऐसा बस। प्लस जो मेरे टीम मेंबर्स है राइट, जो बैकएंड वाले जितने बंदे, फ्रंट एंड बंदे, सबको मैंने कुबरनेटिस सिखा रखा है, भाई सीख ले, जिंदगी तुम्हारी भी अच्छी हो जाएगी, मेरी आसान हो जाएगी, तेरी अच्छी हो जाएगी। और ऐसा कुछ मेरा खुद का तो है नहीं कि सीख लिया तो कहीं काम बाहर पे काम नहीं आने वाला। कुबरनेटिस आज के डेट में इज ए वेरी नेसेसरी स्किल टू हैव, रिज्यूमे पे अच्छा लगता है लिख रखा है लोगों ने, तो सीख ले। डैशबोर्ड है, वो भी डैशबोर्ड में कुबरनेटिस का दिखाता हूँ, सिंपल सा। वो भी मैं उसको कमांड लाइन मॉडलिंग नहीं बोलता। लेंस पता है आपको? लेंस इज ए वेरी नाइस सॉफ्टवेयर कुबरनेटिस का। हाँ, अरे बहुत प्यारा टूल है, बहुत प्यारा है ना? लेंस ले लो, वो लेंस ले लो, लेंस में डाउनलोड कर लो, इसमें सब कुछ यूआई है भाई, यूआई है। इसमें तुमको डिबग करना है, स्टोर फ्रंट डिबग करना है, क्लिक कर यहाँ पे लॉग्स का बटन है, लॉग्स पे क्लिक कर, सारे लॉग्स उधर दिखता है, इंक्लूडिंग लॉगिन। ये वाला पार्ट मेरा फेवरेट है। आपको सर्वर पे लॉगिन करना है, ये मल्टीपल कुबरनेटिस क्लस्टर्स जहाँ चाहिए लॉगिन करो, सॉल्व प्रॉब्लम सॉल्व। सर्वर पे लॉगिन करना, जाके सर्वर पे लॉगिन कर लो भाई, क्या करना चाहते हो, जो करना चाहते, मैं एक बार कनेक्ट कर लो। हाँ, जो करना चाहते हो लेंस पे जाके कर लो, सब एज इट इज चल रहा है, कुछ कर लाइफ में टेंशन ही नहीं है, सब कर लो जो करना है भाई। मैं ये अगर कोई नहीं सकते तो क्या ही बनाएगा सॉफ्टवेयर, बताओ मेरे को। अगर बैकएंड का बंदा तो ये यूआई यूज करना नहीं आएगा तो क्या ही करेगा बैकएंड बना के, बताओ मेरे को। इतना ही तो करना है, इतना ही तो करना, क्या ही करना। तो उनको डिबगिंग के लिए, स्केलिंग के लिए, स्केल अप करने के लिए, स्केल डाउन करने के लिए, आपका वीडियो नहीं दिख रहा, इसको स्केल अप करने के लिए, स्केल डाउन करने के लिए, ये सब करने के लिए लेंस का एक्सेस दे रखा है सबको भाई, तू ले लेंस, जो करने का, उसमें सारी सर्विसेज दिख रही है, सारे लॉग्स दिख रहे हैं, उसके ऊपर कुछ करना है तो जो मर्जी कर ले। मेरे इन्फ्रास्ट्रक्चर का एक ही काम है कि भाई कुबरनेटिस अप एंड रनिंग होना चाहिए। एज लॉन्ग एज कुबरनेटिस अप एंड रनिंग है, बाकी जिम्मेदारी सर्विस ओनर्स की है, जिसने बैकएंड की सर्विस बनाया, जिसने पेमेंट की सर्विस बनाई, पेमेंट क्यों फटा उसको पता है, मेरे बंदे को क्या बता रहे, घंटा बता रहेगा, बताओ। जो डेवऑप्स का बंदा है, जो सारी का बंदा है, उसको कैसे बता देगा कि पेमेंट सर्विस क्यों फटी है? वो कितना भी कोशिश कर लेगा, उससे होगा, उससे सॉल्व, वो फालतू 2 घंटा वेस्ट करेगा। इससे अच्छा जिसको हमने बोल रखा है कुछ फटे तो समझ में नहीं आ रहा, उस बंदे को 20 बार फोन कर, फोन उठाएगा, वो कोई चॉइस नहीं उसको, सही बात, कर लेगा। एक चीज मेरे को आपसे क्वेश्चन था अबाउट, लाइक यू चूज मूव आउट ऑफ क्लाउड की सबसे सही बात होती है उसकी जो फ्लेक्सिबल प्राइसिंग है वो। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन एक्चुअली स्केल डाउन योर कॉस्ट टू 0 इन केस यू हैव 0 ट्रैफिक। अगर आपका ट्रैफिक थोड़ा स्पाइकी भी है तो क्लाउड इज एबल टू सीमलेसली डू इट। आपके केस में गिवन दैट नाउ यू आर ऑन प्रेम, आपका वो प्रॉब्लम नहीं होगा दैट लाइक इट्स अ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट दैट यू मेड कि आप इतने सर्वर्स तो ले ही रहे। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। द ऑन प्रेम एंड ऑन वेयर मेटल दैट वी आर थिंकिंग राइट नाउ इज 20 इयर्स पुरानी चीजें, अभी ऐसी नहीं है। स्केल टू जीरो मतलब क्यों ही करूँ मैं? स्केल टू जीरो मतलब मेरी कंपनी बंद होगी तभी स्केल टू जीरो होगा, राइट? बाकी जो मेरा ट्रैफिक है, मैं 2 साल से देख रहा हूँ, मेरा पैटर्न मुझे एक्जैक्टली पता है क्या है, राइट? मुझे पता है मेरे डेस्कटॉप, मेरे सर्वर साइड, सेलर साइड पे कितने हैं, बायर साइड पे। सेलर साइड तो परफेक्टली फिक्स्ड ही है, उसमें तो कुछ चेंज नहीं होने वाला। तो ओनली चेंज दैट हैपेंस इज द बायर साइड। बायर साइड पे जो चेंज होता है वो अनएक्सपेक्टेड होता है, वो इतना अनएक्सपेक्टेड होता है कि क्लाउड भी कुछ नहीं कर पाता। फॉर एग्जाम्पल शार्क टैंक जब आया था तो कुछ स्टोर्स थे जो दुकान पे रन होते, अभी कोई बंदा मेरे को पूछ के तो शार्क टैंक पे जाएगा नहीं कि भाई मेरा आज एपिसोड है तो देख लेना, उसको जब मर्जी तब जाएगा, उसको लगता है सॉफ्टवेयर चली जाएगा, समझ रहे? उसको नहीं पता कि स्केलिंग कुछ होती है। जो बंदे ने स्टोर बनाया दुकान पे, उसको क्या पता स्केलिंग क्या होती है? उसको तो लगता है मेरा वेबसाइट है, कुछ भी हो जाए चली जाएगा। तो भाई सब जाते हैं शार्क टैंक पे, बोलते हैं हाँ आई एम जैन सिकंजी, मेरा काफी अच्छा चल रहा है। जैन सिकंजी लोगों ने टेलीविजन पे देखा, उसका रियल टाइम होता था 5, 8, 10 के आसपास पर डे इन जनरल, उस स्टोर का बता एग्जाम्पल दे। शार्क टाइम पे आया 80,000 गया 30 सेकंड में। ओ क्लाउड पे कुछ नहीं कर पाएगा, क्लाउड होता है। अभी सही बात, अभी क्या ही करोगे क्लाउड? अगर आप क्या ही कर रहे 3-4 से 80,000 30 सेकंड में क्या ही कर लोगे? क्लाउड का जो लोड बैलेंसर है तो समझ में आने के लिए कि स्केल हुआ है, उसको लगता है टाइम लगता है। उसको जब समझ में आ गया कि अभी स्केल करना है, फिर क्या करता है वो? एक EC2 स्पिन अप करता है, उसको प्रोविजन करता है, उसको हेल्थ चेक रन करता है, फिर उसको पूल में डालता है, तब तक भैया खेल खत्म हो चुका है। यू आर ऑलवेज वेल प्रोविजन टू हैंडल पीक्स। नो, आप एक नहीं, वो प्रॉब्लम है, नहीं कर सकता। प्रॉब्लम अगर मैंने पीक के लिए प्रोविजन कर रखा तो आई एम ऑलवेज पेइंग फॉर द पीक, जबकि मेरे पास इतना ट्रैफिक ही नहीं है ना। तो आपके केस में पीक पे मतलब जो बेसिक क्लाउड के हाल होंगे वो आपके केस पे भी हाल होंगे। नहीं, हमने मस्त एक सोल्यूशन डाल कर इसके लिए बताता हूँ मैं। सो अभी देखो, क्लाउड में आपने देख लिया कुछ हो नहीं सकता। ऑन प्रेम पे द ओनली चॉइस आई हैव टू ऑलवेज प्रोविजन फॉर द पीक इवन थ्रू आई डोंट हैव पीक,
एंड आई कैन नॉट लेट माई कस्टमर्स डाउन एट देयर बिगेस्ट मोमेंट, आई कैन नॉट लेट देम डाउन, एंड मैं उनको बंद कर सकता हूँ, बंद भी नहीं कर सकता, मैं क्या सही करता हूँ, बात है। मैं बंद भी नहीं कर सकता। कोई शार्क टाइम पे आया, उसका वेबसाइट बंद हो गया, जिंदगी में कोई दुकान यूज नहीं करेगा, उसके बाद करेगा क्या? तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल सा, मेरे पास, मैं बोला सर्वर्स मेरे पास हर एक लोकेशन पे थे, दुनिया गोल है, एक जगह पे रात होता है, एक जगह पे दिन होता है। मेरा सिस्टम सिंपल ये दिखता है कि हर स्टोर का हर लोकेशन से कितना ट्रैफिक आ रहा है रियल टाइम में। अगर और किसी लोकेशन का ट्रैफिक बढ़ गया, फॉर एग्जाम्पल जैन सिकंजी का इंडिया से या फिर मुंबई से या किसी भी लोकेशन से बहुत ज्यादा ट्रैफिक आना स्टार्ट हो गया, मुझे हर एक लोकेशन की पीक पता है कितना हैंडल कर सकता है, ये तो मुझे पता है ना, मेरा सर्वर मुझे पता है कि सर्वर कितना हैंडल कर सकता है। जैसे ही मेरा उससे ज्यादा होना स्टार्ट होता है, मैं उसको प्रॉक्सी करना स्टार्ट करता हूँ नेक्स्ट लोकेशन पे, नेक्स्ट लोकेशन पे, नेक्स्ट लोकेशन, ऐसे मेरे पास 22 लोकेशन से अलग अलग पूरे वर्ल्ड में। व्हाट इज द वर्स्ट दैट विल हैपन? कुछ ऑर्डर को थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा। 200 मिलीसेकंड बहुत ज्यादा, ज्यादा। 200 ज्यादा मिलीसेकंड। 200 मिलीसेकंड किसको समझ में आता है कि क्या है? लोगों को 5 सेकंड वेबसाइट पे वेट करने की आदत है। मैं बोलता हूँ मेरा बहुत फास्ट है, चल ठीक है बहुत फास्ट है, तो 200 मिलीसेकंड स्लो भी हो गया उस दिन, वो भी जब पीक पे था, बंद तो नहीं हुआ। दैट इज द वर्स्ट दैट विल हैपन। उसको पीक कितनी देर रहता है, किसी भी कंपनी का पीक कितनी देर रहता है? 2 घंटा 3 घंटा उससे रहेगा, उसका सबसे क्लोज हो जाता है। जैन सेकंड जी का जब वो हमको पता भी नहीं चला, हम तो घर पे बैठे थे, हमने देखा अचानक से भाई ये इतना सारा रियल टाइम कहाँ से आया। एंड ये वन ऑफ द रीजन वाई वी डोंट नीड सारीज, कि मेरा सारी है भी, वो क्या ही कर लेगा, कुछ नहीं कर सकता, बस वो बात बोल के बैठा रहेगा कि हाँ भगवान कुछ ना हो, और क्या कर और क्या कर लेगा? स्किल तो करने से रहा, स्किल होना है तो अपने आप ही होगा, नहीं होना तो नहीं होगा। द ओनली थिंग ही कैन डू इज नेक्स्ट टाइम हम स्किल के लिए कैसे प्रिपेयर हो सकते हैं, उसके लिए उसको डाउन करना पड़ेगा। दैट उस टाइम पे बैठ के कोई कोई फायदा नहीं है। उस टाइम पे दो ही चीज हो, या तो हैंडल कर लेंगे तो फट जाएगा, दो ही केस, और कुछ नहीं हो सकता। व्हेन यू आर इन इट पीक लाइक दैट, जब आपके पास 30 सेकंड या 1 मिनट होता है एंड यू हैव सो मच ट्रैफिक अचानक से आ गया, लिटरली आप कुछ नहीं कर सकते। आइदर यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड और यू फेल। आप उस टाइम पे रियल टाइम में कुछ नहीं कर सकते। जब बंद हो रियल टाइम में बंद हो गया, बट हाथ ही जोड़ के बैठा, चल जाए बस, चल जाए, यही होता है। हम भी यही करते चल जाए कैसे तो भी। Although my entire experience has been cloud, even in cloud, that's what we do. कि भाई Cloud में चल क्या जाए कर लो? कैसे तो। फ्रॉड में आप क्या कर लो, 2-4 मशीन नया एक्स्ट्रा स्पिन अप कर लो, और क्या ही करोगे? उसको भी स्पिन अप होने में टाइम तो लगता ही है। तब तक सोचो कि भाई पीक खत्म हो जाए उसका, तो हम भी वही करते हैं, इधर उधर घुमाते रहते हैं ट्रैफिक को, जब तक सब कुछ ठीक ना हो जाए, सब कुछ ठीक हो गया तो वो सब ठीक हो गया। ऐसा देखो ना, बस इंडिया में, इंडिया के अलावा बाकी लोकेशन से, वहाँ पे हमेशा इंडिया में जब दिन होता है तो वहाँ पे मोस्टली रात ही होती है, वहाँ पे लोएस्ट ट्रैफिक चलता रहता Lowest उसका मैं traffic होने वाला है। This is a पे तो मैं very गड़ी good रहा हूँ, insight. Very good. पे तो मैं वहाँ पे गड़ी रहा हूँ। This is a very good insight. कि आपके पास अगर मतलब a lot of people think कि अरे कि इस पे क्या होगा, अरे उस पे क्या होगा। आपने वो जो प्रॉक्सी वाला तरीका बोला ना, that is really nice, कि अगर आप एक रीजन और आप दूसरे रीजन पे डाल दो, क्योंकि वो एनीवेज वहाँ पे ऑलमोस्ट रात होगी या लेट होगी, ऐसा वेरी लो प्रोबेबिलिटी कि अक्रॉस द वर्ल्ड आपका फुल पिक चल रहा है। नहीं ऐसा नहीं होता ना, नहीं चलने वाला, अरे नहीं होने वाला। बी वेरी रियलिस्टिक टू दैट। हो भी जाएगा तो 2 सर्वर में एड्रेस पे डाल भी दूंगा तो क्या ही हो जाएगा, 2 सर्वर में एड्रेस पे भी डाल दूंगा उस टाइम, क्या ही फर्क, वो सही बात। क्या ही फर्क पड़ता है? ऐसा तो मैंने कोई कसम नहीं कर रखी कि हे भगवान आज के बाद मैं एड्रेस यूज नहीं करूंगा, ऐसा नहीं बोल रखा है। ऐसा कुछ आ भी गया तो ठीक है, रात में कोई ना कोई फोन उठाई देगा, ना। हाँ कोई ना कोई फोन पे उठाई देगा, भाई देख ले फट गया तो मैं देख लूंगा। एक और क्वेश्चन था, आप जैसे भी क्लाउड मतलब, सो आपने आपका स्टैक बताया, यू हैव RabbitMQ, यू हैव Kubernetes, आपका पूरा ओपन सोर्स स्टैक है। अगर कभी आपको कोई प्रोप्राइटरी चीज मतलब आपके दिमाग में नहीं आएगा कि जैसे DynamoDB, रेट, आरडीएस यूज किया था ना, आरडीएस यूज किया था, बहुत दिन तक यूज किया, उसके बाद मैंने बोला भाई माफ कर, नहीं यूज कर। एक तो परफॉर्मेंस फटता है उसका, गंदे तरीके से फटता है, दूसरा प्राइस में यूज लेते हैं। देखो हम इंडिया I've had my own SAR experiences with RDS. EDS वॉल्यूम स्विच और मार गया, हमारा डाउन टाइम, मतलब भाई तुम स्विच मार रहे हो, हमें क्या को डाउन टाइम दे रहे हो, कितना क्या ही फर्क पड़ेगा तुम लोगों को, EDS स्विच करे जा रहे हो। सी हम लोग सिंपल से चीज में को समझ में आती है, हम लोग इंडियन लोग हैं, मैं INR में कमाता हूँ, मेरे कस्टमर्स मेरे को 3,000 रुपये साल का देते हैं, समझ रहे हो? सही का कोई बहुत अच्छा है तो 40,000 रुपया दे देगा मैक्सिमम साल का, जो इंटरप्राइज है वो बहुत ज़्यादा देते हैं, अलग चीज़ है, पर जो छोटे कस्टमर्स को 3,000 रुपये साल का देते हैं, उसमें मैं डॉलर में पैसा नहीं दे सकता। RDS इज लाइक $15 पर मंथ पर GB ऑफ रैम, समझते हो? मेरा अगर डेटाबेस 128 GB रैम यूज कर रहा है तो 128 इंटू 5 कितना होगा, वो इंटू 15 देख लो कितना होगा, दैट्स ओनली फॉर रैम। देन स्टोरेज का पे करना है, कंप्यूटर का पे करना है, CPU का पे करना है। भाई इतना पैसा नहीं मेरे पास, मेरा डेटाबेस $150 पर मंथ में चलता है, तो मैं क्यों ना चलाऊं? वो तुमसे अच्छा चलता है तो क्यों ना चलाऊं, मुझे बता क्यों ना? तो हमने प्रोप्राइटरी RDS यूज किया था। आपने बोला INR to USD वाला जो पार्ट है, क्योंकि इंडिया when people say India is a price sensitive market, it actually means कि भाई हमारी जो spending capacity we earn in INR, तो भी अगर हमारी अर्निंग INR में है तो फिर डॉलर में कैसे पे करें? तुम्हारे डॉलर की प्राइस तो इंडिया में चले ही ना। इंडिया में सॉफ्टवेयर के लिए पे कौन करता है? इंडिया में सॉफ्टवेयर के लिए कौन पे करता है? सब ढंग से सोच के देखो, इंडिया में सॉफ्टवेयर के लिए कौन पे करता है? मैं अपनी वाइफ को पूछा था कि ऐसा, तो बोलती है, मैंने उसको पूछा था कि विंडोज, वो तो विंडोज तो फ्री है ना, एंड सी वाज ए एजुकेटेड गर्ल, राइट? हम इस इंडस्ट्री से आते हैं, हम इस दुनिया से आते हैं जहाँ पे विंडोज के लिए हमने जिंदगी में भी पे नहीं किया, मैंने खुद पे नहीं किया, तो बाकी छोड़ो। 7QWRG वाला विंडोज XP का CD की सबको याद रहेगा, राइट? वो किसी ने नहीं खरीदा था, किसी ने खरीदा नहीं था, सब फ्री में इंस्टॉल कर देते।
मोबाइल फोन आप अपना निकाल के देख लो, आपने कितने सॉफ्टवेयर के लिए पे किया, मैं अपना निकाल के देख लेता हूँ। भगवान जानता है आपने कितना पे किया, भगवान जानता है मैंने कितना पे किया। डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर के लिए पे करना, टैली के अलावा जिंदगी में कोई कुछ नहीं पे। उस मार्केट में अगर मैं पैसा कुछ भी निकाल ले पा रहा हूँ, वो बहुत बड़ी बात। उसको अगर मैं यूएस के हिसाब से $99 पर मंथ का प्राइसिंग स्टार्ट करूँ तो लोग नहीं लेंगे। काफी काफी सही इंसाइट है, काफी सही इंसाइट है। एसटीएस स्विच का था। आपका आपका जो ये बेयर मेटल है वो होस्टेड कहाँ पे? सो जो हमने मेजर रखा है, सो मेरा मेजर जो सर्विसेज है दैट इज इन आईओ फ्लड की कंपनी है, फिनिक्स स्नैप की कंपनी है। फिनिक्स स्नैप की कंपनी है। फिनिक्स स्नैप इज ए वेरी लार्ज डेटा सेंटर बेस्ड आउट ऑफ यूएस। इवन एडब्ल्यूएस के कपल काफी सारे यूज करते हैं। तो इट्स वेरी गुड डेटा सेंटर। वहाँ पे हमने एक छोटी सी कंपनी हायर कर रखी है। दे मैनेज आवर एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर देयर, दे मैनेज एवरीथिंग फॉर अस देयर, हमको नहीं करना पड़ता कुछ भी। एंड दे वी पे देम ऑन अ मंथली फिक्स मंथली फी। हमने ये भी नहीं रखा कि मैं हार्डवेयर ओन कर लूंगा। वी हैव ओन्ड सर्टेन हार्डवेयर, कुछ हमने खरीद भी रखे हैं, बट दे मैनेज एवरीथिंग फॉर अस। दे आर लाइक रिमोट हैंड्स और सर्विस प्रोवाइडर, और जैसे भी बोलो होस्टिंग कंपनी, जैसे भी बोलो, दे आर फॉर अस। हम उनको पैसा देते हैं, दे गो डील विद द डेटा सेंटर, दे डू केबलिंग, दे डू इंस्टॉलेशन। आप तो हार्डवेयर सही जो भी प्रॉब्लम जो आपने स्टार्टिंग से, जो आपने पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में बताया कि आपका फैन चलना बंद हुआ, वो लोग करके तो वो जो भी कुछ है वो सबको संभाले, वो करके देते हैं। मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सब कुछ कर देते हैं। आई हैव रिलेशनशिप विद देम मोस्टली 4 साल 5 साल से मैं कर रहा हूँ, तो इट्स फाइन। एंड ऐसे 5,000 कंपनी से जो करती है, छोटी छोटी 5,000 कंपनी से जो करती है, मुझे खुद फिजिकली डेटा सेंटर में नहीं जाना। ये उनका काम है। दिस इज व्हाट दे डू फॉर लिविंग। मैं उनको बोलता भाई तू करके दे दे। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में एक कंपनी है यूटा करके, यूटा में भी हैव सम कपल ऑफ सर्वर्स, यूटा हम यूज करते हैं। यूटा में भी वी हैव अ डिफरेंट बिलिंग मॉडल वहाँ पे, यूटा इज इन इंडिया। फिर जहाँ पे मुझे जरूरत पड़ती है कि क्विकली सर्विस चाहिए या फिर स्किल ऊपर नीचे ज्यादा करना पड़ सकता है, उसके लिए आई यूज वल्चर। वल्चर पता रहेगा, वल्चर इज यस यस, वल्चर डू बेयर मेटल अक्रॉस द वर्ल्ड, इन एवरी सिटी दे डू बेयर मेटल। मुझे एज लोकेशंस हैं, they are on vulture, most of them are vulture, some of them are outside vulture, but most of them are running on vulture because, and they will let you spin up a bare metal server in couple of minutes. अगर मैं अभी ऑर्डर, मतलब अभी मुझे चाहिए तो 7-8 मिनट में मेरे को नया सर्वर मिल जाएगा। दैट इज लाइक एज गुड एज क्लाउड ना। अगर मुझे नया सर्वर इसके अभी करना है, सही बात, एज गुड एज क्लाउड, एंड आई गेट ए वेरी गुड। जहाँ को मुझे अर्जेंट में कुछ चाहिए तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। एंड जहाँ पे मुझे बड़ा डेटा सेंटर नहीं मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल आईओ फ्लड, मतलब अपना जो फिनिक्स स्नैप है, दैट इज नॉट एवरीवेयर, so I can simply go and get in smaller cities from these guys, vulture से ले लेता हूँ ऐसा। couple of workloads I have on digital solution, छोटे से 1-2 रखा है, but इस हमने बहुत पहले यूज किया था, अभी नहीं यूज कर रहा हूँ। Bare metal is mostly on vulture and Phoenix Snap and IO। that's pretty awesome, pretty, मतलब it's like you get almost all the benefits of cloud without paying the price of it, right? हाँ, सी कंपनीज की चीजें काफी चेंज हो गई पिछले अगर 5 साल में देखोगे ना, चीजें काफी चेंज हो गई है। When we say bare metal, right, लोग अभी लगता है कि डेटा सेंटर खरीदना होता है, डेटा सेंटर मैनेज करना होता है। नहीं करना होता भाई, लोग हैं जो कर देते हैं आपके लिए, सर्विसेज हैं, सब कर लेते हैं। देयर आर कंपनीज हु आर कमिंग अप एज फॉर एग्जांपल फिनिक्स स्नैप का ही एक नया जो प्लेटफॉर्म आया था, दे लेट यू प्रोविजन बेयर मेटल सर्विस ऑन डिमांड। दैट इज द डेटा सेंटर प्रोवाइडिंग दिस सर्विस। डेटा सेंटर खुद ही वो सर्विस दे रहा है। AWS console, that is like AWS console, क्या मतलब क्लिक करके हो जाएगा। इक्विनिक्स का नाम सुना रहेगा आपने, इक्विनिक्स का नाम सुना रहेगा। इक्विनिक्स बस प्राइसिंग बहुत ज्यादा है उनका, इक्विनिक्स का प्राइसिंग बहुत ज्यादा है, मैं यूज नहीं करता। बट इक्विनिक्स इज वन ऑफ द एग्जांपल जहाँ पे यू कैन जस्ट गो क्लिक ऑर्डर बेयर मेटल सर्वर, यू विल गेट इट डिलीवर्ड इन 5 minutes। मतलब से ज्यादा क्या चाहिए? You get the performance of a bare metal server, you get the pricing of a bare metal server, you get the reliability of a bare metal, reliability घटता ही है, you get the क्या कहते हैं mostly performance होती है, pricing होती है bare metal service, उसका आपको मिल रहा है। and is as much as cloud, तो क्यों नहीं यूज करोगे भाई? यूज कर लो। तो आपने जब मूव किया, राइट, सो आपका जब पहला ऑलमोस्ट 100% ट्रैफिक जब आपका इस पे गया, तब जब पहला बर्स्ट आया तो क्या था विकल्प? How was it experience? Like, were you confident कि यार हो जाएगा? But देखो नहीं अपने को, देखो कोई चॉइस नहीं है, ऑनेस्टली बताओ कोई चॉइस नहीं है। बट वो कुछ तो धक तो हुआ ही होगा ना कि साला चल जाए, हमेशा करता है वो, हमेशा ही करता है। यू नेवर नो कब करते हैं, वो हमेशा ही करता है। एंड आई कैन नेवर बी श्योर, एंड नॉट जस्ट मी, राइट। मतलब लोग बोल देंगे हमारा बहुत कुछ अच्छा है, बट देखोगे तो कब किसका क्या फटेगा, नोबडी नोज। आई विल गिव यू एग्जांपल, लाइक कभी भी कुछ भी फट सकता है, कभी भी किसी का भी बोल सकता है। जियो का नहीं फटा होता, इतना ही कॉन्फिडेंट लोग होते थे। जियो का जब ये हुआ था, आईपीएल स्केल हुआ था, नहीं फटता ना, ऐसे नहीं, उन्होंने तैयारी नहीं करी थी, बट फटा ही, सबका ही फटता है। 2-4 बार फटने के बाद ही लोगों को कॉन्फिडेंस आता है। व्हाट्सएप का कितनी बार फटा है, तब जाकर उनको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आया कि हाँ भी सही चलेगा। इवन देन उनका जब स्पीक आता है तो दे आर लाइक, उनको पता नहीं होता फटेगा नहीं फटेगा, तब तक तो नहीं होता है। तो स्पीक आता है, फेल ओवर करे, चलो ऑफ कोर्स करते ऑफ कोर्स। या अभी क्योंकि फटाने की बात चालू थी तो वाला फेल ओवर कर ही लेते हैं। अब मैं दिखाता हूँ आपको, सो जस्ट मैं दिखा रहा हूँ। ये फॉर एग्जांपल ये बायबॉय इज वन ऑफ लार्जेस्ट कस्टमर्स, बहुत बड़ी D2C कंपनी है।
I'll just show you. इसका करना है कांट हो भी इसी वेबसाइट खोल के कांट करना है बस हाँ तो क्या हो गया ये तो क्या हो जाएगा कॉन्फिडेंस so now I will I will just go and here मैं इसका आपको पहले दिखाता हूँ कि कहाँ कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है। अभी देखो सिंपल से पहले ये देखो कि अगर एक वेबसाइट है फॉर एग्जांपल बाय बाय राइट, इसका टाइम टू फर्स्ट बाइट कितना आ रहा है आपको 41 मिलीसेकंड, 41 मिलीसेकंड, 18 मिलीसेकंड, 34 मिलीसेकंड, 24 मिलीसेकंड, 22 मिलीसेकंड, ऑलमोस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड इसका जो टाइम टू फर्स्ट बाइट है वो अंडर 50 मिलीसेकंड्स है। अगर ये वेबसाइट में कहीं एक जगह पर होस्ट करूंगा तो ये पॉसिबल नहीं है नहीं है क्योंकि आपका बैंगलोर टू न्यूयॉर्क का टाइम तो लगेगा। करेक्ट 300 मिलीसेकंड तो मिनिमम लेटेंसी है, उसका कुछ नहीं कर सकता मैं। So that basically means these servers are being served from all those locations, correct? इसका आपको एक्चुअल लोकेशन दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल लेट्स लुक एट दिस, ये हो गया एम्स्टरडम से सर्व हो रहा है, देख रहे हो? यस दिस इज बीइंग सर्व फ्रॉम एम्स्टरडम, ये भी एम्स्टरडम से हो रहा है। स्टेट इज लंदन, ये लंदन से हो रहा है, करेक्ट? यस। इफ आई एसएफ देखूंगा तो एसएफ मेरा न्यूयॉर्क से हो रहा है, सिंगापुर मेरा सिंगापुर से हो रहा है। सिमिलरली अगर देखोगे तो बैंगलोर मेरा शायद से बैंगलोर से हो रहा है, करेक्ट? अब इसमें से लेट्स टेक एम्स्टरडम, मैं एम्स्टरडम को उड़ा देता हूँ, ठीक है। लाइक पीपल शुड रियलाइज इंजीनियरिंग होती क्या है, मतलब हाँ मैंने ये अपना हाँ सर ये न्यूयॉर्क, ये मैं न्यूयॉर्क वाला सर्वर है। यस इसको मैं कर देता हूँ टर्न ऑफ, ठीक है गया। यस गया इस समय गया। अभी न्यूयॉर्क से जो मेरा ट्रैफिक सर्व हो रहा था दैट ट्रैफिक शुड गेट रीराउटेड समवेयर, करेक्ट ना? या अभी देखो ये न्यूयॉर्क से पहले कहाँ पे जा रहा था, करेक्ट? आई विल जस्ट रन इट टेस्ट नाउ। अरे अच्छा आ गया हाँ आ जाएंगे, आ जाता है, आ जाएगा। कहाँ से आ गया? 231 एंड कितना टाइम लगा डियर, कितना टाइम लगा? नाइस काफी कूल था ये। आपके सामने मैंने सर्वर शट डाउन किया या एंड एक पैकेट ड्रॉप हुआ, एक भी पैकेट ड्रॉप हुआ, एक चीज पता भी नहीं चलता। तो आपका न्यूयॉर्क में बेसिकली व्हेन यू टर्न्ड इट डाउन तो क्या? एक सर्वर टर्न के वहां पे तो मल्टीपल सर्वर्स गेटवे बंद कर दिया तो हो गया ना, गेटवे बंद कर दिया तो हो गया ना। आपने गेट पे बंद गॉट इट। तो मतलब पूरा के पूरा रीजन ही खत्म हो गया वहां का आपका। हाँ जो सर्वर मेरा ट्रैफिक एडवर्टाइज कर रहा था, सी द वे दिस सिस्टम वर्क राइट, एंड इतना फास्ट में कोई भी लोड बैलेंसर नहीं काम करता है क्या? सिंपल ही नहीं है राइट। इतना फास्ट में हेल्थ चेक करके ट्रैफिक रिरोट कोई कर पाएगा? अभी हो क्या रहा था देखो, अभी द व्हाट आई डिड वाज द वे दिस सिस्टम वर्क्स राइट की प्लस पहले मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ बिफोर आई एक्सप्लेन की व्हाट एक्चुअली हैपेंड। I will ping this IP first. I will ping this IP. आपको IP देखो, IP दिख रहा है? Yeah. हर जगह से सेम IP है? हाँ ये कैसे पॉसिबल है? देख रहे हो हर जगह सेम IP है। सही बात है, हर जगह से सेम IP है एंड हर जगह से ये IP हर जगह से सर्व हो रहा था। यस मेक सेंस? क्या मचा है सर बताओ। अभी बताओ। सो अभी क्या हो रहा है कि द वे इट वर्क्स राइट, पहले ये क्यों किया वो समझो, देन हम कर क्या रहे हैं वो समझते हैं। अभी मेरे पास जो डोमेन्स है राइट, आई हैव टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डोमेन्स, सबका अपना डोमेन होता है। आई नीड टू गिव देम वन IP, आई कैन नॉट गिव देम 10 IPs। मैं सबको आपको 10 IP दे दूंगा, अलग अलग लोकेशन का आप यूज कर पाओगे। आपके DNS में तो एक ही IP जाएगा ना, तो आई हैव टू गिव यू ओनली वन IP। एंड उसका अगर मैं एक IP दूंगा तो दैट IP विल ऑलवेज बी टैग टू वन रीजन। यस अगर मैं लेट्स से फॉर एग्जांपल AWS यूज कर रहा हूं तो AWS का जो IP होता है वो रीजन स्पेसिफिक होता है। नाउ दे हैव अ प्रोडक्ट कॉल्ड ग्लोबल स्लेटर व्हिच इज अ सिंगल IP across all regions. GCP also have a recently new product, but even then if you get the IP that is region specific, and then अगर मैं उनका IP दूंगा तो that IP is again then type to AWS या GCP। कल को मैं अगर GCP छोड़ के AWS पे गया या AWS छोड़ के GCP पे गया, then I have to ask all my customers to update the IP। अगर IP ना देके दूसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास, मैं उनको एक DNS का रिकॉर्ड दे सकता हूँ, मैं तू CNAME ऐड कर दे, CNAME में तू मेरा फॉर एग्जांपल DNS डॉट, बट CNAME रूट पे सपोर्ट नहीं करता, रूट डोमेन पे यू कांट पुट CNAME। यस DNS का लिमिटेशन है, क्लाउडफ्लायर करने देता है आपको, 2-3 कंपनीज करने देती है, बट मोस्टली रूट डोमेन पे यू कांट पुट CNAME। तो आई नीडेड अ वे टू हैव द IP जो मैं कंट्रोल करता हूँ, तो दैट IP बिलोंग्स टू अस। वो IP देखोगे तो हमारे नाम पे है, हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से IP ले रखा है, दैट इज कॉल्ड बेसिकली ब्रिंग योर ओन IP। ये सेम IP मेरा पहले AWS पे था, अभी AWS के बाहर चलता है। फिर हमने AWS को IP दिया, बोला कि IP आप यूज करो, कल को मैं आपको छोड़ के जाऊंगा तो जहाँ पे भी जाऊंगा मैं अपना IP लेके जाऊंगा, मेरे कस्टमर्स के लिए मूवमेंट इज कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट। Now that IP I am advertising on the internet from all those locations.
मैं हर एक लोकेशन से आईपी खुद ही एडवर्टाइज कर रहा हूँ. दैट इज कॉल्ड एनीकास्ट. एंड एनीकास्ट इज, या, तो अगर आपने सुना रहेगा तो राइट, सो एनीकास्ट इज वन ऑफ द प्रोटोकॉल्स जहाँ पे you can use the same, basically can use the same IP address advertise from multiple locations. आगे मेरे पास एक लोकेशन पे 5 सर्वर्स है, दूसरे पे 5 सर्वर्स है, तीसरे पे 5 सर्वर्स है. From all those locations I can advertise the same IP address. And the way generally that the internet works is right कि it will always try to find the shortest path possible to the destination that you have. वो routing protocol के अंदर ही लिखा हुआ है कि they will always try to find the shortest path. अगर मैंने बाइवा ओपन किया यहाँ से या फिर न्यूयॉर्क से या एम्स्टर्डम से, जहाँ से भी मैंने बाइवा ओपन करने का ट्राई किया, वो क्या होगा कि उसकी नियरेस्ट जहाँ से एडवर्टाइज हो रहा है वो वहाँ पे जाने का ट्राई करेगा. टेक्निकली इट्स नॉट दैट सिंपल. रॉड्स, बीजीपी रॉड्स काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, कभी कभी नेटवर्क कॉम्प्लिकेशंस होता है. इट्स नॉट ऑलवेज दैट वे, बट 99% केसेस में इट विल ऑलवेज फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ. एंड शॉर्टेस्ट पाथ इज नॉट बेस्ड ऑन डिस्टेंस, बट द पैकेट को ट्रैवल करने में कितना टाइम लग रहा है, इन दैट सेंस. तो मैंने क्या कर रखा था, मैंने हर लोकेशन से अपना आईपी एडवर्टाइज कर रखा है. तो जब आप उस डॉट की सीडीएन पे जाके परफॉर्मेंस चेक कर रहे थे, तो हर एक लोकेशन से वो जिसका जो नियरेस्ट लोकेशन था वहाँ पे जाके वो अपना जो स्टोर था वो सर्व कर दे रहा था. मैंने जब सर्वर बंद किया तो क्या हुआ, जैसे ही मैंने सर्वर बंद किया, जो जहाँ पे गेटवे मेरा चल रहा था, जैसे ही वो एडवर्टाइजमेंट बंद हो गया, दैट ब्लॉक्स गायब हो गया इंटरनेट से. इंटरनेट को पता ही नहीं कि एग्जिस्ट भी करता है. तो जो नेक्स्ट पैकेट जाएगा, जब उसको पता ही नहीं कि आईपी यहाँ पे है भी, तो क्या करेगा, उसको जो नेक्स्ट नियरेस्ट है उसके पास जाएगा. जो नेक्स्ट नियरेस्ट है उधर चला जाएगा. न्यूयॉर्क का नेक्स्ट नियरेस्ट कौन सा था, सारे सेम आईपी एडवर्टाइज कर रहे हैं, हो गया फेल ओवर. हो गया फेल. दिस लेवल ऑफ फेल ओवर कहाँ से मिलेगा. एंड ऐसा मेरे पास जितने भी लोकेशन है, ईच ऑफ देम इज कंप्लीटली सर्विंग द एंटायर स्टोर फ्रंट आई हैव, राइट. मेरे पास 20,000-50,000 जितने भी स्टोर्स हैं, सारे स्टोर्स हर एक लोकेशन के पास कंप्लीटली इंडिपेंडेंटली यूनिक है. दे आर ऑल डिस्कनेक्टेड फ्रॉम ईच अदर. तो बंद क्या होगा, फिर बंद होने के चांस ही नहीं है. तो इससे अच्छा क्वेश्चन है, आपने जो बोला कि ये आपका जो गेटवे का आईपी है, तो आपका गेटवे सिंगल इंस्टेंस है नहीं ना, तो आपके वो मल्टीपल मशीन सेम आईपी एडवर्टाइज कर रहे होगा ना. नहीं, सो सी, इतना कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है. यू हैव वन गेटवे जहाँ पे सारा ट्रैफिक आएगा. दैट ट्रैफिक गेटवे विल राउट द ट्रैफिक टू इंटरनल जितने भी मशीन है उसके ऊपर. हाँ, सो इज दिस गेटवे सिंगल मशीन? सिंगल मशीन, नो प्रॉब्लम. अगर मुझे कल 2 भी डालना है ना गेटवे, तो मैं दोनों मशीन से सेम आईपी एडवर्टाइज कर दूंगा, बस सेम आईपी एडवर्टाइज. हाँ, तो लोड बैलेंसिंग हो गया. इसके लिए वर्चुअल आईपी का कॉन्सेप्ट वर्क्स कि मतलब हर कोई चीज सेम आईपी एडवर्टाइज. करेक्ट. एंड सेम थिंग, अगर मुझे लेट्स से एक लोकेशन पे मुझे एक से ज्यादा गेटवे चाहिए भी, मैं हर एक मशीन से सेम आईपी एडवर्टाइज करना स्टार्ट कर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली वो थोड़ा इधर जाएगा, थोड़ा उधर जाएगा. जो मशीन बंद हो गया उस पर नहीं जाएगा, जो मशीन चल रहा है उस पर जाएगा. तो दैट इज ऑटोमेटिक फेल ओवर. गेटवेज पे मोस्टली जरूरत नहीं पड़ती है. मतलब सी, फ्रॉम माई अंडरस्टैंडिंग, द वे आई लुक एट इट, मैं एक सिंगल लोकेशन पे बहुत ज्यादा फेल ओवर करने का ट्राई नहीं करता. फॉर मी अगर कुछ भी प्रॉब्लम आया, इवन सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आया, कोड में प्रॉब्लम आया, स्केल में प्रॉब्लम आया, उसको निकाल दो. दैट्स द फास्टेस्ट वे टू सॉल्व थिंग्स. उसको सीधा सीधा निकाल दो सर्विस में से, ट्रैफिक अपने आप स्टेबल हो जाएगा. देन यू स्पेंड 5 आवर्स 6 आवर्स टू डिबग कि क्या हुआ था, हाउ डू यू इंश्योर कि वापस ना हो. अब रियल टाइम में प्रोडक्शन में फिक्स करोगे तो फटेगा, एंड यू विल मेक मिस्टेक्स, यू विल डू थिंग्स, यू विल मेक चेंजेस जो आपको बाद में जनरेट होगा कि मैंने क्यों किया, उस टाइम कुछ और नहीं कर सकता. उसकी वजह से यू विल हैव मोर डाउन टाइम. वो तो निकाल दे भाई, क्यों चाहिए. जैसे कुछ फटा उस लोकेशन को निकाल दे गेटवे. एंड आज के डेट में एक सिंगल, अगर लेट्स से एक सिंपल सा अगर एनजीएक्स का इंस्टेंस डाल दिया, मैं एनजीएक्स का यूज नहीं करता, तो सिंगल अपने एनजीएक्स डाल दिया, 80,000 90,000 आरक्यूएस इजीली हैंडल कर सकता. 80,000 आरक्यूएस इज अ लॉट ऑन, एंड दैट आरक्यूएस इज ऑन द स्टोर फ्रंट, नॉट ऑन माय एपीआई डेटाबेस की बात नहीं कर रहा हूँ. पेज रेंडरिंग पे 80,000 किसके पास होता है. बहुत कम स्टार्टअप्स है इंडिया में भी, मैं गिन के दे सकता हूँ जहाँ पे 80,000 पेजेस पर सेकंड दे आर सर्विंग. बहुत कम लोग हैं, बहुत कम है. मतलब इफ यू डू द मैथ राइट, 80,000 into 3600 करोगे तो 1 घंटे का देख लो कितना ट्रैफिक आता है. उतना ट्रैफिक कितना है, इतना नहीं आता. पीपल ओवर कॉम्प्लिकेट. मतलब one of my past employees when I used to work used to have single Nginx instance acting as our gateway. इसलिए मैंने आपको पूछा था, and we were thinking यार मल्टीपल चाहिए क्या. अच्छा तो रहा एक मिनट, क्यों ही करना है, क्यों ही खोलना है, क्यों ही मल्टीपल चलना है. मतलब लेकिन अगर करना रहा तो कैसे करेंगे वो. Basically that was one of my exercises. जब करना रहा कैसे करेंगे, बस लिख के रख ले ताकि देख ले अपन लोग. हाँ, करना है तो मेरे लिए सिंपल, एक ऑर्डर सर्वर स्टार्ट कर दो, उस पर भी सेम आईपी डाल दो, चल जाएगा. आईपी डालने के लिए भी आप सिंपल स्क्रिप्ट जो पूरा स्टार्ट से एंड सेटअप करके देते हैं तो हो जाता है, फटक से हो जाता है. सो इफ आई हैव दिस लेवल ऑफ रिलायबिलिटी राइट, सो दिस टेक्स केयर ऑफ रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस, सब कुछ तो कर ही रहा है, तो ठीक है. क्या चाहिए, नहीं बेस्ट है. मेरा काफी सही था. Who would have thought आप सही में मशीन बंद करके ट्रैफिक निकल रहा है, जा रहा है, लोगों को बड़ा मजा आने वाला. सही. ओके सर, one next thing is इसमें like if I think from a developer's perspective, given that आपका तो पूरा Kubernetes है, so it means that for developer it is like completely transparent. उनको क्या पता नहीं पड़ता क्या चल रहा है, वो नॉर्मल लोकल पे डेवलप करेंगे, पुश हो रहा है, CI/CD में is basically taking care of. लेकिन
देर आर सम प्रोडक्शन इश्यूज जिसमें वो मशीन में लॉग इन करके करते, तो विद दिस काइंड ऑफ स्टफ it's like normal SSL जैसा मशीन में करते हो. There is nothing different on an basically for an on-prem stuff. Right? तो No, मतलब if अगर EC2 पे लॉगिन करना आता है आपको तो मशीन पर मतलब you won't notice ज़्यादा कुछ अलग है ही. कुछ भी नहीं है. The thing is like to be honest, this was the most asked question. जब मैंने लोगों को पूछा था कि तुमको क्या क्वेश्चन है, 6 लोगों ने ये पूछा कि भाई मशीन में मतलब अगर कोई प्लॉट फटा तो उसको डिबग कैसे करोगे. मतलब EC2 पे कैसे करते हो? EC2 पे कैसे करते हो? You either you see अगर आप Kubernetes यूज कर रहे हो तो you go look at the pod logs जो आप ऐसे भी देख ही सकते हो. Yep. Kubernetes में adopt लोग जाके डेवलपर्स डे टू डे जाके Kubernetes के नोड पे जाकर लॉगिन करते हैं. adopt कि लोग नोड पे जाके लॉगिन करते हैं, नहीं करते, जनरली नहीं करते until you are part of your infra team. अब नहीं करोगे. Let's say for खुदा न खास्ता करना पड़ भी गया, तो then नोड में आप कैसे कनेक्ट करते हो? You click on lens, you go to nodes, you click on SSH, हो जाता है. ये इधर भी हो जाता है. मैंने आपके सामने वही किया था अभी वही किया. करेक्ट. वो भी नहीं करना, चल ठीक है, तुमको वो टर्मिनल से करना है. नोड का आईपी एड्रेस है, एसएसएस की तरह एडेड है, कर लेंगे लॉगिन. क्या मिल जाएगा? कुछ नहीं मिलना. सही है. कर ले. हाँ, तो आपने अभी लॉगिन की बात की, तो आपका जो ऑब्जर्वेबिलिटी स्टैक क्या हुआ? तो आपके जो हर एक मशीन के लॉग्स जो एमिट हो रहे हैं वो कोई जगह पे कलेक्ट हो रहे हैं, तो लॉग्स का वन तो काफी हाई होता है. वो आप क्लाउड पे चढ़ाते हो या कहाँ पे? सो डिपेंड्स कि कौन सा लॉग है. सो द इंपॉर्टेंट लॉग्स फॉर मी आर एक्सेस लॉग्स. फॉर एग्जांपल जो स्टोर फ्रंट हो गया, स्टोर फ्रंट का एक्सेस कहाँ से हो रहा है, कौन से लोकेशन से हो रहा है, क्या आईपी एड्रेस था, क्या यूजर एजेंट था, अपना उसका डिवाइस क्या था, कहीं फ्रॉड तो नहीं है, कहीं बॉट तो नहीं है. बॉट अटैक्स आर मोर हार्मफुल देन एक्चुअल ह्यूमन स्किल. हमारे लिए डिटेक्ट करना कि ये बॉट है कि नहीं, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. नॉट जस्ट फॉर मी, फॉर माई स्टोर्स. लेट्स सी कोई बड़ी कंपनी है, कोई एंटरप्राइज है, अमेजन उसको कॉल कर रहा है, फ्लिपकार्ट कॉल कर रहा है. बिगेस्ट कंप्लेन दैट वी गेट फ्रॉम एंटरप्राइजेस कि अमेजन फ्लिपकार्ट उसका साइट हमेशा कॉल करता रहता है. फॉर मी, जब तक मैं इसको लॉक कर नहीं पाऊंगा तो कैसे पता चले? उसके लिए हमने इलास्टिक डाल रखा है, ELK स्टैक डाल रखा है. इलास्टिक पे Nginx से हमने FluentBit पता है, FluentBit इज CNCF का टूल है. तो FluentBit will gather logs from your Nginx instance, और वहाँ से वो इलास्टिक सर्च पे जाके, इलास्टिक भी हमारा सेल्फ होस्टेड है, एक बड़े से मशीन पे इलास्टिक डाल दो, 4 टेबल का उसमें हार्ड ड्राइव है, चलता है. जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है ऐसा. एंड आपको 2-3 महीने का डेटा आइलैंड टेस्टेड चीज है. EFK स्टैक हो गया, इधर का ही हो गया, सॉर्टेड. इसमें क्या होगा? वेट करो. इलास्टिक सर्च क्लस्टर क्लाउड में आपका सेल्फ होस्टेड नहीं, सिर्फ वो भी सिंगल मशीन पे चलता है. वो हमारा पूरा मॉनिटरिंग स्टॉक है, सिंगल मशीन पे चलता है. उस पर क्या 256 GB रैम है, 6 टेराबाइट का NVMe है, एंड 56 के आसपास CPU कोर्स हैं. उसमें मिला ELK डाल रखा है. उस पे लॉक डिलीट करने पड़ते होंगे गिवन दैट NVMe. उसमें 2-3 महीने के बाद 2-3 महीने के बाद रोटेशन में डालते रहते हैं कि 2-3 महीने से पुराना लॉग्स मेरे भी नहीं चाहिए. मतलब अभी अगर फ्रॉड अगर होना है तो आज होगा. 3 महीने पहले क्या फ्रॉड हुआ तो उसका मतलब क्या है, क्या करना है, वो लेके क्या ही करूंगा मैं. तो उसके बाद के जो लॉग्स है दैट वी स्टोर ऑन अपाचे ड्रूइड. इज एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर. अपाचे ड्रूइड में हम लोग एक्चुअल जो हम एनालिटिक्स दिखाते हैं अपने सेलर को, वो रखते हैं कि एक्चुअल सेलर का एनालिटिक्स कि भाई तुम्हारे स्टोर पे कितने लोग आए थे, कहाँ से आए थे, कितने लोगों ने क्लिक किया, कितने लोगों ने कन्वर्ट किया, उसकी एनालिटिक्स हम ड्रूइड पर रखते हैं. और बाकी जो एक्चुअल प्रोडक्ट एप्लीकेशन लॉग्स वो 3-4 महीने बाद डिलीट मार देता हूँ. मैं क्या करूँगा, आज तक किसी ने मुझे मांगा नहीं, लॉग दे ये दे दूँ, मैं डिलीट मार देता हूँ, हो गया खत्म, जाने दे. वापस से विल जस्ट रिबिल्ड चलता रहता है उसके बाद. सो EL के बाद ट्रेसिंग के लिए हम लोग सिग्नॉस यूज करते हैं. पहले हम लोगों ने ट्रेसिंग के लिए कुछ और यूज करना स्टार्ट किया था, बट अभी ट्रेसिंग के लिए येगर यूज करना स्टार्ट किया था. अभी भी येगर यूज कर रहे हैं, बट स्टोरेज के लिए सिग्नॉस यूज करते हैं. सिग्नॉस इंडियन स्टार्टअप ही छोटा सा वो यूज करते हैं ट्रेस कर देखने के लिए. मैंने तो शॉर्ट डाला था, मैं बैकएंड वालों को पसंद नहीं आया तो उन्होंने चेंज कर लिया. तो दे यूज अपना सिग्नॉस डाल रखा है ट्रेसिंग के लिए. एंड द वे वी हैव सेट अप ट्रेसिंग, इफ API इज स्लो आई कैन ट्रैक अप टू द डेटाबेस क्वेरी. अगर एक HTTP रिक्वेस्ट में मेरे को अगर लेट्स से 150 HTTP क्वेरीज हैं, आई हैव मेरे को ट्रेसिंग है, लॉग्स है, ये सब सेटअप कर दिया है. वो लोग खुद ही खेलते रहते हैं उसमें, जो मर्जी आते हैं वो डालते रहते हैं. उनको यही चीज़ बोल रखा है भाई कुबरनेटिस पे चलना चाहिए, सेल्फ होस्टेबल होना चाहिए. मैं पैसा नहीं देगा तुमको जो खेलना है खेल ले. आई डोंट माइंड. मेरे को बता, कुछ नया मिलेगा तो मुझे बता देना, कुछ नया इंटरेस्टिंग मिलेगा तो मेरे को भी बताना. बाकी जो खेलना है खेलते रहो. तो बैकएंड वाले खुद ही खेलते रहते हैं, किसी को ये यूज करना है ले भाई, पटेगा तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. हाँ सही बात है, पटेगा तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी. नाइस. बाकी जो करने का तो आपका अभी हमने API को देखा था जिसमें वो GCS पे डाल रहा था, तो विच इज वेयर योर ऑल ऑफ योर एसेट्स गो टू GCS और वहाँ पे आपका CDN कॉन्फ़िगर्ड है. तो गिवन दैट CDN इज अ वेरी क्रिटिकल पार्ट, तो वो तो आपको रखना ही पड़ता है. तो CDN इज यूज्ड फॉर योर स्टैटिक फाइल, जावास्क्रिप्ट, इमेजेस एंड व्हाटनॉट. तो आपके CDN के ऊपर ऑप्टिमाइजेशंस, तो उसका इमेज प्रोसेसिंग पाइपलाइन है या फिर वो आप जो CDN का आउट ऑफ द बॉक्स फीचर होता है ऑन डिमांड इमेज ट्रांसफॉर्मेशन वो यूज कर. तो इसका जो अपना इमेज ट्रांसफॉर्मेशन का सर्विस है वो हमने खुद से लिख रखा है. बट जो इमेज सर्व होती है वो स्टैटिक से, मतलब वो अपना बनी से सर्व बनी पीछे यार, काफी अच्छा यार, चलता है वो. एंड नॉट जस्ट बनी, मतलब हमने ये अपना क्या कहते हैं, आका में पहले यूज करते थे
अभी भी थोड़ा कहीं कहीं जब अकामा यूज होता है, अगर बहुत ज़्यादा अच्छा चल गया अकामा कहीं पे तो अकामा यूज कर लेते हैं। कभी अगर मेरा लेट्स से क्लाउडफ्लेयर चल गया बहुत अच्छा तो क्लाउडफ्लेयर यूज कर लेते हैं। सो इफ यू गो टू दिस वेबसाइट राइट, इफ यू गो टू CDN वर्ड्स, इट विल टेल यू इन रियल टाइम कौन सा सीडीएन अच्छा चल रहा है। कौन सी? हाँ, तो इसमें देखोगे तो AWS, GCP, Edgecast, Bunny, Fastly, Isgo, JSLib, Cloudflare, Akamai, ये सारे हैं करेक्ट। तो आई हैव कॉन्ट्रैक्ट विद Akamai, Cloudflare, Fastly, Bunny एंड AWS, GCP तो है ही थे, बट उन दोनों का मैं CDN यूज नहीं करता, बाकी सबका है। Bunny यू सॉ राइट, अभी सर्वर हो रहा था। Fastly भी कभी कभी हो जाता है, कभी कभी Cloudflare हो जाता है, कभी Akamai हो जाता है, बट बेस्ड ऑन कौन से दिन कौन सा अच्छा चलता है। दिस ग्राफ चेंजेस एवरी सिंगल। प्राइसिंग मोटा मोटा सबका सेम ही है, एंड प्राइसिंग आपको पेमेंट उतना ही करना होता है। अब एक जगह से करोगे 5 जगह से करो, पेमेंट आपको उतना ही करनी है। अगर ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अक्रॉस मल्टीपल CDNs तो पैसा आपको उतना ही पे करना है। इंस्टेड ऑफ वन यू आर पेइंग टू 4 कंपनीज। तो दैट वे जहाँ से भी जितना हेड एंड जेब से उतना ही जा रहा है। हाँ, एंड पीपल गेट बेटर परफॉर्मेंस, तो ठीक है यार, कोई बात नहीं। एरो नॉट मनी। डिड यू सी वसाबी? वसाबी देखा आपने? वसाबी था, वसाबी। हाँ, तो वसाबी, सो द स्टोरेज दैट वी हैव ऑन GCS राइट नाउ दैट वी आर शिफ्टिंग टू वसाबी। हमने पूरा माइग्रेट कर लिया है। वी हैव मोस्ट ऑफ द स्टफ जो स्टैटिक थी हमने वसाबी पे डाल दिया है। प्रीटी चीप, बहुत अच्छा है, चलता है, ठीक है। प्रोबेबली विल मूव फ्रॉम वसाबी पे डाकर सारा वो चलाएंगे। एक हार्ड ड्राइव में उसका वसाबी का वही है कि मुझे रिलायबिलिटी पे थोड़ा सा शंका है, so that is not CP and images are my most critical thing, right? And वो plot पे बहुत ज़्यादा expensive, बहुत ज़्यादा, मतलब imagine the images that I have, right? Images I have. So वसाबी पे मैं क्या कर रहा हूँ कि एक हार्ड ड्राइव लेके सोच रहे हैं कि ऑफिस में ही रख ले। आप चाहो तो आपसे पूरा इन्वर आपके ऑफिस से फिनिश कर दो। नहीं यार, बेस्ट है, बेस्ट। मेरे पास स्टोरेज है यहाँ पे, सी ईच सर्वर है व्हाट 3.6 into 2 TB का स्पेस है इस हार्ड ड्राइव का। एक हार्ड ड्राइव 4000 रुपये का आता है। ईच सर्वर हैव 8 बेस, एक सर्वर के अंदर 8 आएगा। इससे मेरे पास 6 सर्वर है यहाँ पे। मैं देखूंगा तो 400 500 GB मैं यहाँ पे डाल ही सकता हूँ। ब्रॉडबैंड फ्री है, ब्रॉडबैंड हमने यहाँ पे ऑफिस वाला जो होम ब्रॉडबैंड होता है वो लगा रखा है। वो बोलते हैं फ्री है, जितना यूज करने करो। सही। तो आपने मतलब बस एक चीज कंफर्म करनी थी इस पे कि basically given that there is some other company who manages the infra, who manages the bare metal infra for yours, so OS upgrades, hardware upgrades अगर कुछ करना है सब वो लोग संभालेंगे। तो जो सिक्योरिटी पैचेस, एक सेकंड EC2 पे OS अपडेट वो Amazon पे देता, एटलीस्ट वो अपने को करना पड़ेगा। सही बात, उसमें करना पड़ेगा। सिक्योरिटी पैचेस Amazon पे देता आपको नहीं, अच्छा वो हाँ, मतलब उनकी सर्विस आ गई है अभी, बट हाँ नहीं करता, करे पैसे लेते उसके ना। हाँ साल जब भी मैं बोलता हूँ सब मुझे वही बोलते हैं सिक्योरिटी पैचेस कौन मारते हैं भाई, EC2 पे कौन मारते हैं। लोगों का देख 3 साल पुराने के सर्वर जो पर स्पिन किए थे वही चलते रहते, वही चलते। सही बात है, किसी को तो मारना ही पड़ेगा। वो लोग तो नहीं मार के देने वाला, वो लोग तो मार देंगे तो पैसे लेंगे, जैसे Amazon पैसे लेते। मतलब मोस्टली करता है डेटाबेस के साथ होता है, बाकी इस पे तो ठीक है। तो डेटाबेस वाले पे तो उनकी सर्विस होती है, वो बोलते हैं कि ये तुम्हारा मेंटेनेंस विंडो है। आपके केस में भी वही होगा, मेंटेनेंस विंडो पे मैन्युअली जाके पैच अपडेट नहीं सी पैच अपडेट जो है वो अगर सॉफ्टवेयर पैचेस है तो आपको ही मारने हैं। वो आप EC2 पे हो तब EC2 पे अंटिल यू आर यूजिंग RDS नहीं यूज कर रहे हो तब तक तो नहीं करते अपडेट। EC2 का मैंने तो नहीं देखा है, मिस विंडो में खुद से जाके सिक्योरिटी पैच मार दिया, नहीं असल में नहीं देखा है। करेक्ट, RDS का मारते हैं। RDS इज 15, टोल्ड यू ना, RDS $15 पर GB पर मंथ ओनली फॉर की मेंटेनेंस विंडो में आके मेंटेनेंस कर दूंगा आपको, मैं खुद ही कर लूँ। जस्ट डू द मैथ ना भाई, एक बंदे की सैलरी कितनी सबकी है, नहीं सही खुद ही कर लेते। तो सिक्योरिटी पैचेस पीपल हैव मिसकम्युनिकेशन की बेयर मेटल पे बहुत सिक्योरिटी पैचेस नहीं होते भाई, क्लाउड पे भी खुद ही करना पड़ता है। जहाँ तक हार्डवेयर अपग्रेड की बात है, हार्डवेयर अपग्रेड AWS पे खुद ही हो जाता है, तो सब कुछ खुद ही करना होता है। तो कोई भगवान आगे नहीं करता। हार्डवेयर अपग्रेड क्या ही करोगे, मतलब क्या हार्डवेयर अपग्रेड करूँगा? मैं बोलूँगा कि अभी मुझे अपग्रेड करना है, जैसे आप अपनी डेवऑप्स टीम को बोलते हो ना भाई अपडेट कर दो, या वैसे मुझे उनको बोलना पड़ता है अपडेट कर दे हार्डवेयर। क्या करना है, 6 महीने 8 महीने में एक बार बोलना पड़ता है भाई इसमें 150 GB रैम और एक्स्ट्रा ऐड कर दे, एक सर्वर में 150 GB रैम एक्स्ट्रा और ऐड करते, वही बोलना पड़ता है मेरे को 6 महीने में एक बार। सर्वर्स अभी नहीं, आप सर्वर्स जो हम लोग बंदों की बात कर रहे थे, लेट्स कम टू दैट। आपकी इंजीनियरिंग टीम का पहला रिएक्शन क्या था? विले सेट की क्लाउड को धक्का मार दे, क्लाउड को डिच करते, लेट्स गो ऑन प्रेम, क्या था रिएक्शन? सो आई एम फॉर्चुनेट कि बंदे काफी सपोर्टिव है, उनको खेलने में मजा आता है। दे आर लाइक वाह क्या है, कुछ तो नया मिलेगा खेलने के लिए, लेट्स प्ले विद इट। उनको एक बैडमिंटन मशीन दे दो, उस पर सबसे बड़ा डेटाबेस इंस्टॉल करेंगे, उसके ऊपर फिर जाके देखेंगे इसका परफॉर्मेंस कैसा आ रहा है, इसका IOPS कितना है। आई विल जस्ट शो यू द IOPS, देखो आपको मजा आ जाएगा। उनको ये देखो मैंने अभी 3 सर्वर्स पे अपना ये रन किया था, क्या कहते हैं अपना FIO समझ तो क्या होता है ना, FIO मतलब डिस्क का ये करता है। इसका ये जो सर्वर है ना, ये सर्वर डेमोन्स्ट्रेट ये सर्वर देखो कौन सा है, दिस इज ए GCP सर्वर विद 56 कोर्स करेक्ट एंड 128 GB रैम, ठीक है।
सिमिलर स्पेक मैंने लिया है. ऑफ कोर्स CPU एंड RAM हैड नथिंग टू डू विद योर IOPS, बट जस्ट सेइंग कि मैंने ट्राई किया सिमिलर स्पेक लेने का ऑन ऑल 3. ये भी मेरा देखोगे तो ये भी मेरा सेम है. ये भी देखोगे तो मेरे 56 कोड है, 128 GB 50 है अपना, इसमें 56 GB रैम है. इसमें देखोगे तो 56 कोर्स 128 GB रैम, करेक्ट है. इसमें 72 कोर्स है, 128 GB रैम है, करेक्ट है. यस. अभी पहले वाला सर्वर का IOPS देखो कितना मिल रहा है मेरे को. IOPS में आई विल हाईलाइट द IOPS फॉर यू. वो रीड IOPS is 249K, 253K. Yep. 253 की IOPS सुना था इससे पहले आपने कहीं पे सुना था कहीं पे? Pretty low. ये देखो ये कितना है, सेकंड सर्वर कितना है, ये दिस इज योर. इसका पढ़ लो कितना है. Read IOPS is किधर गया इधर. Read IOPS is BW. वो अच्छा ऊपर है 9067 ऊपर 9067. You understand? Hey solve. This machine, and now I will tell you this machine का cost. Okay, this machine जो आपने रन कर रहे हो, right? If you run this machine on GCP 56 जो आप रन कर रहे हो, right? इसका cost, if you see, I will just look at the cost, right? GCP cost calculate. चलो cost आपने बोला बाद में करेंगे, तो चलो बाद में. cost अभी मैं नहीं, but आप लोग खुद भी कर सकते हैं. मतलब that's insane. बाहर में जाए cost, चलो बाहर में जाए cost. Just performance देखा आपने. Next level. 10,000 versus 253 213K and 253K. That's insanely high. ये मशीन मेरा क्या करता है, इस मशीन पे मैं क्या चलाता हूँ, कुबरनेटिस के मास्टर के वर्कर नोड चलाता हूँ. कुछ नहीं करता इस मशीन पे. ये bare metal मशीन है, कुबरनेटिस के वर्कर नोड चलाओ तो उस पे मक्खन चलता है. डेटाबेस चलाना है, मैं डायरेक्टली डेटाबेस इसी पे चलाता हूँ. डेटाबेस में चलाऊँ ना, जो भी डेटाबेस चलता है डायरेक्टली इसी पे डेटाबेस इंस्टॉल कर दो, पोस्टग्रेस इंस्टॉल कर दो भाई. पोस्टग्रेस क्या भागता है, मजा ही आ जाएगा आप. ऐसा मेरे को तो आपने इतना मोटिवेट कर दिया ना भाई. मैं खेलने वाला हूँ इसके साथ भयंकर वाला. दिस इज एपिक. मतलब इमेजिन इतना डिफरेंस, मतलब डिफरेंस होगा मेरे दिमाग में तो 2x 253K और 10K 20x का फर्क है. मतलब 10K नहीं था. हाँ 10K था ना 10K था ना. हाँ 253K वर्सेस 10K. इट्स नॉट डिफरेंस. हाँ मैंने ये मशीन लिया, ये मशीन GCP पे लिया था, राइट. एंड आई आस्क्ड द टीम टू गेट मी द जितना अच्छा डिस्क हो सकता था इसका. So and this is what you are paying for, right? When you and see the fundamental difference is, right, I'm not blaming कि cloud slow है, right? अगर मुझे cloud level का reliability चाहिए, simple है, right? अगर मुझे भी cloud level का reliability चाहिए, what choices I have? मैं सिर्फ एक डिस्क लगा कर चला दूंगा, GCP का चला देगा. Will it work? Probably yes. They will also get the same IOPS. But then अगर कुछ भी फटा उस डिस्क में, then they will lose my data. Can I forgive them for that? मैं नहीं बोलूँगा. Cloud मतलब reliability होती, right? Can I forgive them? The answer is no. So they don't have a choice. They have to replicate the data. The moment they start replicating the data, the moment you get into distributed file system, and पहले से distributed is not just कि एक सर्वर पे आपने 4 हार्ड ड्राइव लगा रखी है, उसके बीच में आपने रेड लगा दिया. अगर सर्वर फट गया तो क्या करोगे? Then you have to replicate it across those different servers in the same rack. Then you get into the network. Then अगर वो rack फट गया तो क्या होगा? Then you have to replicate to other racks on the same zone probably. Then कुछ cloud provider will replicate you across zones. Then you get into milliseconds of latency. हर एक IOPS का latency, IOPS ज़्यादा क्यों मिल रहा है? सिंपल सा फैक्ट है, latency मेरी अच्छी है. जिसकी latency जो मेरी थी और GCP की तो काफ़ी अच्छी थी. पर अगर latency मैं पढ़ूंगा इसमें, right? So you will simply see the latency of NVMe will always be lot better compared to anything else, correct? Yes. क्योंकि वो एक तो NVMe है, second directly connected है with the motherboard. Connected है. Yeah. और but when you OS level virtualization भी नहीं है. उसका multiple layers में translate होता है. When you look at now cloud provider like GCS का जो cloud storage है, they have to first तो आपका नेटवर्क आ जाएगा, सबसे पहले नेटवर्क आ जाएगा. The moment you get into network, चीजें वहीं से स्लो होनी स्टार्ट हो जाती है. You will not get the same performance. Then you are not using NVMe. और वो अभी चलो ठीक है वो डालना स्टार्ट भी कर देंगे. Then replicate नहीं हो पाएगा उतने फास्ट. तो वहाँ पे भी उनको टाइम लगेगा. फिर then you move from one server to another server. फिर पैरिटी भी करनी है आपको कि रेट लगाओगे तो वो भी स्लो होता है. हर एक डेटा राइट करने के लिए आपको 5 जगह पे जाकर राइट करनी है तो भी टाइम लगेगा. हर एक डेटा रीड करने के लिए आपको 10 जगह पे 10 अलग अलग सर्वर्स पे जाकर रीड करके लेके आनी तो भी स्लो होगा. सो द मोमेंट यू स्टार्ट गेटिंग इनटू वंस इनटू मल्टीपल राइट, चीजें स्लो होनी तो स्टार्ट होनी पड़ेगा, वो फटना स्टार्ट होता है. बट डू आई नीड इट? माय क्वेश्चन इज डू आई नीड दैट लेवल ऑफ रिलायबिलिटी? नहीं आपका चाहिए. वो चीज जो आपने पकड़ी है ना वो बहुत सही है. लाइक डू आई रियली नीड दिस? मतलब a lot of people don't ask this question. ये हमें चाहिए क्योंकि सब लोग बोलते हैं मेरे को ये भी चाहिए ये भी चाहिए ये भी चाहिए. बट क्या genuinely चाहिए या like is it really something that you really need? या it's like कि क्योंकि बाकी लोगों के पास है just in case
वाला केस नहीं होना। अभी अभी लोगों का वैसे ही होता है। रिवर्स साइड, अभी भी रिवर्स साइड फॉर एग्जांपल, रिवर्स साइड हम यूज कर रहे हैं, बंद ही हो गया आधे घंटे के लिए, क्या हो जाएगा? क्या आप यूज करना बंद कर दोगे इसको? बताओ मेरे को। डू हैव अ चॉइस? डू हैव अ चॉइस? कहाँ जाओगे भाई, कहाँ जाओगे? ट्विटर पे कल ही मैं देख रहा था, मैंने 2-4 लिंक पे क्लिक किया इनसाइड माय ओन अकाउंट हेल्प सेंटर पे जाके, तो सारे लिंक 404 थे। हाँ इलॉन मस्क बस बंदा है, उसको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है क्या हो गया? कैन यू इमेजिन? ट्विटर का अकाउंट पेज में 4 लिंक्स थे, वो चारों लिंक्स 404 हो, मतलब क्या ही हो गया? मैं ट्विटर यूज करना बंद कर दूंगा उसके लिए? नहीं भाई, उसके लिए पैसे बचाए ना, उसने आधे दिन का फायर कर दिया, पैसे बचाकर पॉपुलर हो रहे हो। मैं आपको जनरली बोल रहा हूँ, आई ट्राई टू डाउनलोड समथिंग फ्रॉम ट्विटर। मैं हेल्थ सेंटर पे गया था, मोस्ट ऑन बेसिक संबल ऑन द सेम सेक्शन 404 और मेरा फर्स्ट रिएक्शन था 404 है, बट देन विद इन 2 सेकंड्स आप ठीक है चल बाद में कभी देख लेंगे, एंड आई टोटली फॉरगॉट अबाउट इट व्हेन यू सेड दैट सडनली रियलाइज कि एक्चुअली उनके हेल्थ सेंटर के फ्रॉम देयर वेबसाइट पीछे हेल्थ सेंटर पे क्लिक करो तो 404 आने लग जाता। हाँ मतलब नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, नॉट द एंड ऑफ द, ठीक है यार, ठीक है, क्या हो गया? ठीक है, हो गया तो हो गया। वी ट्राई, जितना सर्वर छोड़ो लोग, सर्वर से जितने भी लोग हल्ला कर रहे हैं आज के डेट में, सारे इंजीनियर्स हैं ना, एंड आई विल बी डायरेक्ट एंड ब्लंट ऑन इट। जितने लोग हल्ला करें सारे इंजीनियर्स की, कैसे तुम्हारा ये फट जाएगा भाई? मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज्यादा तेरा कोड फटता है, सबसे ज्यादा तेरा कोड फटता है, नहीं फटता क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर डाउन टाइम वर्सेस कोड का डाउन टाइम कौन सा? करेक्ट 100%। मेरे भी आज तक, मेरे खुद के जितने डाउन टाइम आज तक हुए रहेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर का डाउन टाइम 2-3 हुए रहेंगे, कोड के डाउन टाइम हर 4 दिन तो कुछ भी फटता है हमारा भी। हमारे कोड के अंदर हर 4 दिन कुछ मेरा भी पड़ता ही है। आई कैन ब्लेम कि हाँ मेरे इंसान ज्यादा अनरिलायबल है हार्डवेयर। इंसान ज्यादा फटता है, इंसान का कोड ज्यादा फटता है। हार्ड भाई पड़ता है, पड़ता है, क्या कर सकते हैं? पार्ट ऑफ लाइफ, इंसान है, पटेगा नहीं पटेगा तो भगवान ही, जीपीटी से सॉल्व अबाउट इट। चल लेट्स एड्रेस एलिफेंट इन द रूम सर, कॉस्ट या ऑफ कोर्स ये एक और क्वेश्चन था, जो लोग बोल रहे थे कि हाउ क्विकली यू डिप्लॉय, राइट? लोग काफी पूछ रहे थे कि हाउ क्विकली यू डिप्लॉय करें। वो तो वो एक्चुअली में पूछने वाला था, पर मैंने बोला कि क्योंकि आपने देखा वहाँ पे 4 घंटे पहले डिप्लॉय हुआ था। वो छोड़ दो, कितने डिप्लॉयमेंट्स है? देखो कितने डिप्लॉयमेंट्स हैं। हाँ ना, मैं बता 14,000 कमेंट्स। आई विल स्टार्ट सो ये मेरे आज के कमेंट्स है, ये आज के कमेंट्स है। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आज के हैं। आज छुट्टी है, आज छुट्टी है। Okay. हाँ सही बात, आज तो छुट्टी है। हाँ कल का देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 26 27 28 27 थे कल के, करेक्ट? 27 कल के 23 का 35, 2 डेज अगो मैं करूंगा तो 35, 35 डिप्लॉयमेंट्स आई एम डूइंग राइट ऑन डे। ये ऐसा नहीं कि मैंने, मेरा पॉडकास्ट था तो मैंने आज बोला कि भाई जल्दी डिप्लॉय करो। मेरा एवरेज कितना है? 14,000, करेक्ट? टोटल कमिट्स कितने हैं? 14,000, करेक्ट? इंफ्रा फोल्डर में, इंफ्रा इसमें एक्चुअल जो प्रोडक्शन पे जाता है, दिस इज नॉट ए किसी ने टाइम पास करते हुए कमिट की थी, एक्चुअल प्रोडक्शन पे जाता है। रीडमी मैंने लास्ट ईयर बनाया था, राइट? सो 1 ईयर 365 डेज डिवाइड, सॉरी अपना 14,000 3 के डिवाइड बाय 36 कितना हुआ? ऑन एवरेज 38 डिप्लॉयमेंट्स ऑन एवरेज एवरी सिंगल डे। अगर मैं इसमें से वीकडेज निकाल दूंगा, राइट, तो 300 दिन होते हैं। 47 डिप्लॉयमेंट्स, 40-50 डिप्लॉयमेंट मैं दिन का करता हूँ हर दिन। मजाक नहीं है ना? मजाक नहीं है ना, ऐसा थोड़ी ना कि सब कुछ रुका पड़ा है। चल रहा है मस्त मक्खन नॉट रीजन चलना तो बजट 250, मेरा तो उधर ही हो गया 253 के वर्सेस 10 के, मैं तो उधर ही गिर गया। दिस इज समथिंग दैट आई नेवर एक्सपेक्टेड, पर इतना वास्ट डिफरेंस मैं तो उधर ही आ गया। क्लाउड पे ऐसी, क्लाउड पे iOS जो मैंने देखा, राइट, बिटवीन 10,000 20,000 25,000 मैक्सिमम हो जाएगा इफ यू टेक द फास्टेस्ट पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन। 25,000 मैक्सिमम हो जाता है। अदर पीपल माइट हैव वेरी, मतलब हो सकता है मेरी नॉलेज कंफर्म नहीं हो, बट द काइंड ऑफ iOS दैट आई सी ऑन दिस वेब मेटल्स, राइट, 50,000 वाले इन लाख, वो वाला मैंने नहीं देखा है क्लाउड। हो सकता है कभी आज डाल दें, बट मैंने नहीं देखा यार। मेरा पीक था $90,000 अ मंथ। यस दैट्स व्हाट यू, अभी मेरा है बिगिनिंग या नाउ आई पे समवेयर बिटवीन $1,500 अ मंथ। $1,500 अ मंथ। गॉड, ये तो आपके एकदम iOS वाला रेंज हो गया। जब तो iOS का डिमांड इतना होता। मैं आपको मेल दिखाता हूँ, मैं आपको एक्चुअल मेल दिखाता हूँ जब मैंने फाइनल जो मैंने सर्विस ऑर्डर की। ट्रिपल एन, ये देखो मेरा मेल है टू माई कंपनी, राइट, इसको मैं देता हूँ। Hi Mike, I discussed, let's go with the following setup: 5 servers with following configuration, 999 per month, correct? 56 logical cores each, 2.1 से enterprise NVMe हो गया, 128 GB RAM each server हो गया, that's total 280 logical cores, correct? इससे ज़्यादा कोड नहीं चाहिए तो लाइफ में, क्या करोगे? कितना प्राइस है इसका? एंड कुछ मेरे पहले से थे, कुछ मेरे पुराने सर्वर्स थे, तो सब मिला के मैंने आपको 1,500 बोला। 1,500 का 1,800 पकड़ो, 1,700 पकड़ो, ऐसे कुछ रहेगा। बट दिस इज व्हाट आई हैव इन टर्म्स ऑफ ना इंफ्रा वाला।
सही नहीं चाहिए। अभी ये एक्चुअल मैंने दिखा, राइट, दिस वाज द ऑर्डर आई प्लेस्ड, दैट इज पर मंथ, एंड दैट डजंट मीन मेरे को कोई अपफ्रंट पेमेंट करना है। सी विद द बेयर मेटल, वन ऑफ द मिसकंसेप्शन पीपल हैव कि मुझे अपफ्रंट पेमेंट बहुत ज्यादा लगती है। वाज दैट अपफ्रंट पेमेंट ऑलमोस्ट ऑन डिमांड, यस, ऑलमोस्ट ऑन डिमांड, महीने के महीने आज बोला कल, अच्छे होते हैं। आज बोल रहा हूँ कल दे देंगे, मुझे बोलूंगा कल बंद कर दे, तो लोग बंद कर देंगे वो लोग कल जाके। आई डोंट हैव, मतलब मुझे हार्डवेयर ओन नहीं करना। यस, आई कैन गो अहेड एंड स्टार्ट ओनिंग हार्डवेयर। उसका कोड देखोगे तो वो भी है, मैं दिखा सकता हूँ, मेरे पास कोटेशन स्नैप फ्रॉम हार्डवेयर कंपनी, वो लोग बड़ा मान जाएंगे, पब्लिकली दिखाऊंगा। बोल रहा हूँ, a lot of people will be inspired, like अरे चलो कोशिश, मतलब I'm 100% sure there will be some kid, some 20-year-old fresh out of college कि अरे यार करके देखते यार, like जो भी कुछ बना रहा होगा अटेम्प्ट तो करते, कितना ही मुश्किल होगा, will figure it out, और कुछ तो सीखने मिलेगा। like you are inspiring an entire generation 100%। जो भी देखेगा ये पागल होने वाला है, क्योंकि by default it's cloud, मतलब I'm not just saying कि cloud default है। like for example if I talk about services like जो backend as a service आ गया कि भाई तुम्हें कोड भी नहीं लिखना, या फिर तुम्हें सर्विसेज भी बनी बनाई मिल रही है, इतना तो लिख लो। हाँ, मतलब सब कुछ मिल रहा है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, राइट, एवरीथिंग यू आर गेटिंग, राइट, कुछ भी ऐसा नहीं जो नहीं दे रहा हूँ। आई विल ट्राई टू गेट यू एक्चुअली, इफ यू ओन द हार्डवेयर, राइट, उसका क्या कॉस्ट आएगा, आई विल ट्राई टू शो यू, राइट, इफ यू एक्चुअली ओन द हार्डवेयर उसका कॉस्ट आएगा, लेट मी जस्ट ट्राई टू गेट इट। अभी देखो, तो दीज आर योर सर्वर्स, राइट, सो दीज आर योर एचपी सर्वर्स, 32 GB रैम, ईच सर्वर, यू हैव 24 कोर्स, सिमिलर 24 कोर्स, 32 GB रैम, ऐसे 5 या 6 सर्वर्स थे टोटल मिला कर। तो मैंने बोला था कि 1 TB रैम चाहिए, 200 CPU कोर्स चाहिए, उसका कॉस्ट कितना था INR में, देखो मेरे को पर, हाँ 2,28,000। इसमें से भी देखोगे तो इसमें से 50,000 पर मंथ आपका एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट हो गया, विच इज नॉट द इन्वेस्टमेंट दैट यू मेक इन सर्विस। फिर नेटवर्क का कॉस्ट, नेटवर्क कनेक्टिविटी का कॉस्ट हो गया, वो सब देखोगे तो मतलब 1.5 लाख के आसपास ही आता है टोटल, देखोगे तो 1.5 लाख रुपए के आसपास पर मंथ आपका आएगा। और ये चार्जेस 2,28,000 में 2,28,000 में आपको 200 CPU कोर्स मिल रहे हैं, एंड 1 TB ऑफ टोटल रैम मिल रहा है पर मंथ, एंड दैट इज एज गुड एज ओनिंग द हार्डवेयर। आप बेसिकली ओन कर रहे हो, लीजिंग करते हैं उसको हम, ओनिंग नहीं लीजिंग कहते हैं। मैं हार्डवेयर लीज पे ले रहा हूँ। इफ आई जस्ट गो टू AWS and try to calculate, right, I will take number of instance 5 ना, and I will take CPU 40 वाला ले लेता हूँ, 40 CPU 40 × 5 200 हो गया ना, एंड मेमोरी में ले लेता हूँ 200 GB वाला, करेक्ट, $7,000 करेक्ट, दिस इज 74 लाख, नहीं $7,000 पर मंथ, 7,000 पर मंथ हुआ ना, हाँ, तो 80 इंटू, मतलब वो इंटू 100 करना, मोटा मोटा 6 लाख हो गया, 6 लाख, 6 लाख। करेक्ट, स्टिल चीपर, एंड दैट इज ऑन डिमांड। बोथ आर देम ऑन डिमांड। अगर मैं इसमें स्पॉट पे जाऊंगा सस्ता पड़ेगा, अगर मैं 3 साल रिजर्व कर लूंगा तो आई विल प्रोबब्ली गेट लिटिल चीपर। मेरा पर मशीन का कॉस्ट आ जाएगा 560 इन 5, तो कितना 2,800 आ जाएगा, स्टिल सिमिलरली। अगर मैं 3 साल अपफ्रंट पे करता हूँ, 3 साल मुझे अपफ्रंट ही पे करना, मैं खरीदी क्यों ना लूंगा फिर, ओनली 5 मशीन का अगर देखोगे तो उतना ज़्यादा आता है। अगर आप इसका वाला देखोगे, क्या कहते हैं ना, द रेंटल आई एम पेइंग, रेंटल इज चीपर देन द ओइंग, राइट, अगर जो मैं रेंटल वाला पे कर रहा हूँ स्टिल चीपर देन द ओइंग, बिकॉज वो लोग जो हार्डवेयर प्रोक्योर करते हैं वो हार्डवेयर थोड़े से ये वाले होते हैं कि चलो किसी ने ये यूज कर रखा है कुछ दिन की, आधा यूज कर लिया तो वो वाला दे दो, या किसी ने नहीं भी यूज किया तो वो भी यूज कर लो, कहीं से सस्ती डील्स मिल गई तो वो वाले हो गए। यहाँ पे पूरा प्योर डेल पे जाके ऑर्डर प्लेस करते हैं, वो भी फायदा नहीं। फॉर एग्जाम्पल ये जो सर्वर्स मेरे पीछे पड़े हुए हैं, ये सर्वर्स है बॉट फॉर 56,000 ईच, 56,000 मेरे को जो सर्वर्स मिले थे 128 GB रैम के साथ में 20 या 40 CPU कोर्स ईच, दैट इज वन टाइम, एग्जैक्टली, काफी सही डील है। हाँ, 2 साल से चल ही रहा है, मतलब कभी बंद होगा ये पता नहीं, कब जब बंद होगा तब बंद होगा। ऐसा 20,000 में क्या मिलता है डिजिटल सिस्टम पे, आपको 20,000 पर मंथ 5 CPU कोड मिलने वाले पर मंथ। तो like one question that would definitely come, so like for example who should think of going bare metal? देखो, people who have figured out their skill, जहाँ पे once you start out, right, you are in a hyper growth stage, जहाँ पे आपको कुछ पता ही नहीं होता, you don't know anything, आपको कुछ ही नहीं पता कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, literally you don't know anything कि इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है, कितना ट्रैफिक आने वाला है, कितने कस्टमर्स आने वाला है, कितना मार्केटिंग करने वाला हूँ। At that time, when you don't know something, and if you go into bare metal, स्केलिंग प्रॉब्लम्स हो सकता आ जाएगा, अनसर्टिटीज आ जाएंगी, यू डोंट हैव द एक्सपीरियंस, यू विल बी फोकसिंग लॉट मोर ऑन इंफ्रा, आप कर नहीं पाओगे। बट वंस यू हैव रन द स्टार्टअप फॉर 6 months, 1 साल आप चला लिया, देन यू फेयरली नो कि क्या चल रहा है कंपनी में। सबको अपनी कंपनी का औकात पता होती है कि मेरा कंपनी का कितना है, सबको पता होता है कि कल अचानक से उठ के 5 लाख कस्टमर्स मेरे नहीं आ जाने वाले, सबको पता होता है। अपने दिल पे हाथ रख के पूछोगे, आपको भी पता है कि आपके पॉडकास्ट पे कितने कल व्यूअर आने वाले हैं, ये आपको भी पता है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स कितने हैं। चलो आज एक अच्छा गेस्ट आ गया तो थोड़ा बढ़ जाएगा, बट वो बढ़ के अगर आपको ऑन एवरेज 1 लाख व्यूज आता है तो उसका 5 मिलियन नहीं हो, ऐसा सेल्डम होता है। एटलीस्ट चलो यूट्यूब पे हो भी जाएगा। स्टार्टअप में किसी की वेबसाइट पे अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल आप कोई भी नाम बोलो, मैं नाम नहीं बता, आप टेक में तो डायरेक्ट धंधा है ना,
क्योंकि वहाँ पे लोग लोग पैसा देने वाले, तो मतलब वो तो और कम हो गया, मतलब मुफ्त का लेने को तो भी आ जाएगा, इसमें तो नहीं जाना। करेक्ट। इन जनरल जब आपको सब कुछ पता हो जाता है कि फॉर एग्जांपल हे बेस कैंप राइट, बेस कैंप इज वेरी गुड एग्जांपल, डीएसएस वाला राइट, दे हैव फिगर आउट देयर स्केल, दे हैव फिगर आउट देयर स्केल कि भाई मेरा हर मंथ में इतना ही कस्टमर आता है, इतने ही ट्रांजैक्शंस होते हैं, इतनी डेटाबेस क्वेरीज होती है, इतनी ईपीएस कॉल आती है। नाउ फॉर देम जब तुमको सब कुछ पता है फिर क्या पॉइंट है, जब उनको सब कुछ पता है फिर क्या पॉइंट है, फिर तो भाई जब उनको स्केल पता ही है अपना, तो उस स्केल से 3% लार्जर का जो भी बनता है उसका हार्डवेयर रेंटल पे ले लो, देन वो भी यू विल प्रोबब्ली सेव लॉट ऑफ मनी विल सेव। अदर मनी विल नॉट बी डायरेक्टली बेस्ड ऑन कि आप डायरेक्टली सीपीयू टू सीपीयू कंपेयर करोगे राइट, द मनी सेव विल बी ऑन द परफॉर्मेंस। आपको सेम परफॉर्मेंस के लिए हियर यू हैव टू बाय वेरी लिटिल वर्सेस हाउ मच यू आर पेइंग फॉर, बिकॉज़ द परफॉर्मेंस इज नॉट से देख ही लिया हमने, आईएफ से देख ही लिया कितना परफॉर्मेंस डिफरेंस है बेयर मेटल वर्सेस। करेक्ट, सो यू डोंट हैव टू कंपेयर कि अगर मैं AWS पे जाके 200 सीपीयू करता हूँ एंड बेयर मेटल में 200 सीपीयू करता हूँ तो प्राइस पे तो भैया 3x का ही डिफरेंस है, तो इतना ज्यादा मासिक सेविंग कहाँ से होगी। मैं परफॉर्मेंस का डिफरेंस देख लो कितना होता है, लाइब्रेरी का फैक्टर देख लो कितना आ रहा है, बाकी सभी चीजें देख लो कितना आ रहा है, देन यू विल सी कि हाँ यार सही है। देन फॉर डेवलपर्स राइट, फॉर एग्जांपल जो मेरे डेवलपर्स हैं, जो मेरे डेव एनवायरनमेंट्स हैं, आई डोंट रन देम ऑन क्लाउड, एटलीस्ट डेव एनवायरनमेंट यू कैन स्टार्ट शिफ्टिंग टू बेयर मेटल फ्रॉम डे वन ना, बंद हो गए तो क्या होगा, एटलीस्ट दैट यू कैन स्टार्ट डूइंग राइट नाउ। तो आज का कर लो, वल्सर पे जाओ साइन अप करो, या फिर यूनिक्स पे कर लो, या जो लेटेस्ट वाली कंपनीज है, कंपनीज आई द नेम ऑफ यूनिक्स स्नैप पे जाओ, आईफ्लोट पे जाओ, आई कैन इंट्रोड्यूस यू इफ यू वांट, वहां पे बना लो आपका डेव सर्वर। यूएस में ये तो क्या होगा, यूएस हैव लॉट मोर data center options and reliability and providers who can do these kind of deals versus India. Hardners पे जाओगे तो Hardner पे आपको इतने सारे सर्वर्स मिलते हैं जहाँ पे you can just go and find lot of servers very cheap. ले लो उस पे डेटा सर्वर चलाओ ना, जिसका आप यहाँ पे AWS पे $5 पर मंथ दे रहे हो, वहाँ पे आपको 150 हो जाएगा, प्लस उसमें आप वर्चुअलाइजेशन अगर आपको लेट्स से आपका कुबरनेटिस पे हो रहा है काम तो बहुत अच्छी, कुबरनेटिस में नहीं हो रहा है, वर्चुअलाइजेशन लेयर डाल दो, डेवलपर्स को बोल दो भाई जितना मशीन बनाना है इसी में बना, इससे आगे तुमको नहीं मिलने वाला। AWS पे क्या होता है, मोस्ट ऑफ द स्पेंड गोज ऑन कि डेवलपर गया 2 मशीन बना लिया फिर भूल गया उसको, भूल गया। एटलीस्ट स्टार्टअप में वही होता है कि भाई उसमें 2 मशीन बनाया भूल गया, फिर वो चलता आ रहा है, नोबडी नोस क्या चल रहा है, फिर बिल बहुत ज्यादा आ गया, फिर जाकर क्लीन करना स्टार्ट, तो सब करने की जरूरत नहीं है, एक मशीन बना के दे दो भाई, तुमको जो करना है कर ले, इसका बिल मुझे इतना नहीं पे, तुमको एक बीएम बनाना है या 200 बीएम बनाना है, तुम्हारी इच्छा देख ले, है ना। आपने फर्स्ट प्रिंसिपल्स का नेक्स्ट लेवल में लेके चले गए कि भाई क्यों ही चाहिए, क्या ही कर रहा है, प्रॉब्लम फिगर आउट कर लेंगे। रियली नाइस, रियली नाइस, काफी काफी सही था, काफी सही था, काफी ज्ञान मिल गया आज मेरे को। हाँ, कुछ और शेयर कर रहे हैं आपको, कुछ और इंटरेस्टिंग कुछ yes, most of the questions that I when I asked about right, most of the questions I got was around reliability, कि भाई reliable कितना है। I will give you, ये मैं एक पेज ओपन कर रहा हूँ, this page is from Google का पेज देख रहे हो, this is EO West, ठीक है, and not long ago, इसी साल अप्रैल में इस साल अप्रैल में they had a fire incident and उनका पूरा जोन गायब हो गया। जोन गायब होना समझते हो क्या होता है? बहुत बड़ा है, आप बता दो क्या, आप यू एक्सप्लेन, आप बता दो फॉर द बेनिफिट ऑफ व्यूअर, आप बता दो व्यूअर्स को क्या होता है एक जोन मिसिंग मींस व्हाट। सो वी हैव रीजन में मल्टीपल जोन्स होते हैं, ठीक है, दो वन जोन मिसिंग मतलब वन डेटा सेंटर, एंड इफ द रीजन इज गॉन देन व्हाट मींस, रीजन मतलब वो पूरा रीजन के रीजन कट ऑफ हुआ तो उसके अंदर के एक भी जोन आपके लिए एक्सेसिबल नहीं है, तो मतलब लिटरली थिंक ऑफ कि पूरा यूएस ईस्ट वन, यूएस वेस्ट वन, दैट रीजन पूरा। अभी देखो, अभी इनका पूरा का पूरा रीजन गायब हो गया था, नॉट जस्ट जोन, पूरा रीजन गायब हो गया था। नाउ इमेजिन अगर AWS का मुंबई रीजन गायब हो गया तो क्या हो गया, क्या होगा। नाउ उन्होंने क्या बोला पता है अपने कस्टमर्स को, आई विल हाईलाइट दिस एंड रीड दिस, कस्टमर्स कैन फेल ओवर टू जोन्स इन अदर रीजन्स। नाउ यू टेल मी, इंडिया में कितने स्टार्टअप्स को आप जानते हो हु कैन अचीव दिस, कितने स्टार्टअप्स कैन, एक बता दो मेरे को, बाकी सब छोड़, एक बता दो मेरे को। वो भी नहीं है, वो भी अभी फेल ओवर छोड़ो, बैकअप कितने लोगों के पास बैकअप है अदर रीजन, वो बता दो। आई नो नहीं है, मैं जितने लोगों से बात किया एक का भी बैकअप नहीं है, बस वो तो अभी वो आया था कंप्लायंस के चक्कर में लोग करते हैं, वरना तो वो भी ना करे। चलिए अभी बताओ, इफ ए जोन रीजन लाइक मुंबई गोस, सब फट जाएगा ना। एंड दिस वाज गूगल क्लाउड, गूगल इज द सपोज्ड टू बी द बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ऑन प्लैनेट अर्थ, जो है एक्चुअल में है। इवन उनका अगर रीजन पूरा जा सकता है, एंड द ओनली एक्सप्लेनेशन दैट दे हैव इज कि भैया किसी और रीजन में जाकर मूव कर लो। रिलायबिलिटी क्या होती है फिर, रिलायबिलिटी क्या होती है बताओ, जब वही क्लाउड में भी वही करना है, एंड दिस इज नॉट जस्ट गूगल राइट, AWS का जब EC2 AWS का भी पता था, AWS का पता ही है, पता हुआ था, क्या ही होता है, सब लोग हाथ खड़े करते हैं। AWS पड़ता है तो सिर्फ एक ही चीज होती है कि सबका फटा हुआ है, दिस नॉट माय प्रॉब्लम, आई कैन जस्ट वेट एज फास्ट एज आई कैन,
बट जब मेरा फटेगा तो मेरे ऊपर आएगा, दैट्स द ओनली, उसके लिए जो गट्स चाहिए होता है कि अगर फट गया तो इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी। अगर मैंने बेयर मेटल में चलाया, कल कुछ फट गया तो मेरे ऊपर, लिटरली मेरे ऊपर आएगा। सब लोग बोला कि तूने क्यों किया, बट एडब्ल्यूएस फटा तो मैं हाथ खड़ी कर दूंगा, भाई एडब्ल्यूएस फटा मैं क्या कर सकता हूँ। दैट इज ओनली थिंग दैट इज होल्डिंग पीपल बैक। नोबडी गॉट फायर्ड फॉर यूजिंग एडब्ल्यूएस, बट अगर मैं करूंगा तो हो सकता है मेरी जॉब जाएगी। अगर मेरा सिस्टम फट गया, डेटाबेस पूरा फट गया एंड आई लूज कस्टमर डेटा, तो मेरी जॉब जाएगी, बिकॉज मैंने खुद से करा है। बट बाकी सबका, दैट इज द रिस्क, दैट इज द ओनली रिस्क, एंड डिपेंड करता है कितने लोग ले पाएंगे। तो ले पाओ उसी वजह से आपका जो वो रियल टाइम रेप्लिकेशन सेटअप है ही, आर्काइवल सेटअप है ही, सो वो जो सबसे बड़ा रिस्क है दैट इज टेकन केयर ऑफ, व्हिच इज डेटा, रिस्क भी नहीं है। कस्टमर डेटा। हाँ, दैट इज एक्चुअली ठीक है। वहाँ पे आप पूरी गूगल अमेजोन की रिलायबिलिटी ले लो जितना लेना है, वो तो है ही आप, क्योंकि उसमें उसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी नहीं हुई है, वो तो आप उसमें बच गए क्योंकि आपके पास डेटा ही नहीं, दो जगह पे है। तो अभी नॉट एट द चांस कि आपका डेटा सेंटर का भी गया और वो भी गया साथ में, तो आपका फिर क्रॉस रीजन भी होता होगा ना, फिर एक कॉपी क्रॉस रीजन भी होती होगी। So one goes to GCP, one goes to Wasabi. Wasabi, जैसा Wasabi GCP दोनों साथ में अगर बंद हो गया तो then we have a bigger problem. But mostly ऐसा, हाँ, बट बहुत कम होता है। मतलब नसीब खराब हो तो क्या ही कर सकते हो, मतलब फंडिंग ही नहीं मिलेगी, फिर इतना ही नसीब खराब होगा तो फंडिंग ही नहीं मिलेगी बार ना, तो क्या ही कर सकते हैं, दैट्स ओके। बट मोस्टली इतना होता नहीं है, इतना इतने जगह पे होता नहीं है। एंड रिलायबिलिटी, रिसेंटली सॉ दिस सिस्टम राइट, जहाँ पे जीरा था, उनका जीरा था, पूरा गया तो पूरा डेटा डिलीट हुआ था, फिर क्या हो गया, कितने लोगों ने यूज करना बंद कर दिया। वही चल ही रहा है ना, धंधा चल ही रहा है, उनको वाले 3 हफ्ते लगे रिस्टोर करने को, धंधा तो चल ही रहा है ना। बंद तो वही था, तो चीजें तो है, बंद होगा ही होगा। एटलीस्ट यू कैन ट्राई योर बेस्ट, जो मैं भी कर ही रहा हूँ, जितना बेस्ट हो सकता है पॉसिबल वो मैं कर ही रहा हूँ। कल को बंद हो जाएगा तो मैं भी क्या ही कर सकता है, पार्ट ऑफ लाइफ। बट आई विल नॉट लूज कस्टमर डेटा, दैट इज सर्टेन कि आई विल नॉट लूज कस्टमर डेटा। हाँ, डॉन टाइम आ सकता है, 1 घंटे का आ सकता है, हो सकता है कस्टमर डेटा लॉस नहीं होगा, और मैंने वो सिक्योर किया, एंड दैट मेड द कंपनी बिजनेस वाइज इन अ सिचुएशन जहाँ पे आई एम एबल टू गिव माय कस्टमर्स अ लॉट ऑफ परफॉर्मेंस, आई एम एबल टू सेव कंपनी लॉट ऑफ मनी व्हिच कैन मेक मी प्रॉफिटेबल। जो मुझे कल फंडिंग चाहिए उसका तलवार नहीं लटक रहा है, राइट। आई मीन लॉट पीस ऑफ माइंड मिल रहा है, अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, आई एम प्रॉफिटेबल, हैव वेरी गुड ग्रॉस मार्जिन्स ऑन दोस बैलेंस, ठीक है यार, आई डोंट माइंड। दिस एपिक सुपर्ब सर, काफी अलग पर्सपेक्टिव टू बी ऑनेस्ट। आई हैव बीन वर्किंग विद क्लाउड ऑलमोस्ट थ्रू आउट माय करियर, पूरा एकदम ऐसे आई ओपनिंग था। अभी डेटाबेसेस, अभी नाउ बाय लेटेस्ट इंटरेस्ट इज इन डेटाबेस परफॉर्मेंस, इसके वजह से आपके आईओप्स वाले जो है ना, सीधा मेरा ध्यान आईओप्स पे गया, क्योंकि दिस इज व्हाट आई हैव बीन डूइंग फॉर लास्ट 8 months now. So what I'm doing is I love to dig deeper into database from the performance side. कि क्या होता है, literally एक IO के उस पे कैसे काटो। So one of the benchmarks that I did was on bare metal in one of the popular clouds and on my server. मेरे को 2x का डिफरेंस है। अब मुझे समझा कि बिकॉज आई वेंट फॉर bare metal, इसलिए मेरे को ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखा उसमें, राइट। बट अगर मैं कोई एक वर्चुअलाइज्ड मशीन लेता, I would have seen a tremendous thing. So I do database benchmarking. I'm building my own database, very high performant. तो उसके लिए ना एक आयो बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। You are building something, right? What you're building? You're building something, right? What you're building? I'm building database. मेरे को ना database में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट है। Distributed, basically distributed storage engine एक build कर रहा हूँ। उसका मैं क्या बनाऊंगा बताओ पूरा। हाँ, तो tell me what is? हाँ, I'm trying to optimize single node analytics workflow। जो DuckDB करना है, मुझे DuckDB के जैसा सिमिलर एक आइडिया है, तो विथ फ्यू ऑप्टिमाइजेशंस। फॉर एग्जांपल, मैंने क्या किया, आई स्पेंड 1.5 months रीडिंग यूनिक्स रेफरेंस वाली कॉलेज में बुक थी, एडवांस यूनिक्स एनवायरमेंट्स वाली बुक, वो पूरी बुक पढ़ा। सिस्टम कॉल्स एट एंड व्हाट आई रियलाइज्ड इज, जो लोग होते हैं जो इनोवेट करते हैं या कोई डेटा में एकदम सडनली फास्ट हो गया, देयर इज ऑलवेज वन सिस्टम कॉल दैट नो वन हैज एक्सप्लॉइटेड and only that person has done. For example, लोग बोलते हैं काफका फास्ट है। बेसिकली काफका क्या करता है, कर्नल बफर से यूजर स्पेस पे ना लेते हुए डायरेक्टली दूसरे पाइप में राइट कर देता है। सिस्टम कॉल से कर रहा है, लोगों ने तो कुछ जानबूझ के किया, लाइक बन फास्ट है, उसने भी वही किया हुआ है, वो डायरेक्टली सेंड फाइल सिस्टम कॉल यूज कर रहा है। सो दिस इज व्हाट आई रियलाइज कि हर डेटाबेस कोई ना कोई एक सिस्टम कॉल या सेट ऑफ सिस्टम कॉल्स को लेवरेज करता है। तो बोला मैं पढ़ता हूँ सिस्टम कॉल्स, पहले तो सारे पढ़ता हूँ कि ऐसे कौन से कहाँ पे यूज करूँ। तो व्हाट आई डिड, मैं पहले 5 डेटाबेस कुरेद डाला पूरे, पोस्टग्रेस, डकडीबी, रेडिस, ये 3 मैंने पहले करके रखे थे, ठीक है। फिर उसके बाद में पेपाल का जूनो डीबी आया था, उनका सोर्स कोड देखा क्योंकि वो गोलैंग बेस्ड है। फिर उसके बाद में मैंने
AWS के RDS का डॉक्यूमेंटेशन देखा। मेरे को जानना नहीं उनके इंटरनल्स क्या है, मैंने सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा, बिकॉज व्हाट आई लव टू डू इज आई लव टू रीड बिटवीन लाइन्स। हाँ, कहाँ पे ऐसी कौन सी चीज है, क्योंकि अरोड़ा काफी सही चीज है, तो मेरे को उसके अंदर की चीज जाननी है कि कुछ मिलता है क्या मेरे को। तो ये सबका मिश्रण से आई फाउंड फ्यू इंटरेस्टिंग इनसाइट्स, और प्लस IO कॉल्स, सॉरी प्लस सिस्टम कॉल्स, मतलब करके देखते कुछ निकल के आता है। तो आई एम ट्राइंग टू ऑप्टिमाइज ऑन डिस्क IO फॉर ओवर द नेटवर्क एनालिटिक्स कॉल, कि बेयर मिनिमम डेटा ट्रांसफर हो। तो जो कॉर्पोरेशन के एल्गोरिथम्स है, तो एक बहुत अच्छा डेटाबेस है ट्री लाइन करके। सो ट्री लाइन क्या करता है, लाइक वी हैव वेरी पॉपुलर डेटाबेस, वी हैव वेरी पॉपुलर स्टोरेज इन कॉल VLSM ट्री। LSM ट्री आज से 20 साल पहले के असम्पशन पे बना हुआ है कि जब आपने जिसे चालू किया था कि हार्डवेयर अनरिलायबल है, ये अनरिलायबल है वगैरह वगैरह, तो उसका असम्पशन है कि डिस्क बहुत स्लो है और मैग्नेटिक डिस्क है। आज कौन मैग्नेटिक डिस्क यूज कर रहा है चीजों को मैं तो NVMe। तो हमारे बेसिकली ये है कि अगर मेरे पास बहुत ही अच्छी SSD है, कैन आई री इमेजिन अ डेटाबेस, तो डेटाबेस फॉर मॉडर्न स्टोरेज इंजन, तो वो एक पकड़ा एंड उसको अभी डिस्ट्रीब्यूटेड वाले एंगल पे डाल रहा है। तो सिंगल नोड पे व्हाट आई रियलाइज इज कि DuckDB की परफॉर्मेंस बीट करना मुश्किल हो रहा है मेरे को। इन सम एस्पेक्ट्स आई एम एबल टू बीट इट, बट डिस्ट्रीब्यूटेड सेटअप में क्या होगा। तो रिसेंटली आई वाज वाचिंग अ पॉडकास्ट, एक नया डेटाबेस है कॉल्ड नेस, जो है उस डेटाबेस का नाम है TursoDB, TURSO। वो क्या करता है, वो एज पे SQLite देता है। एपिक कॉन्सेप्ट है, एज पे SQLite देता है वो। इवन द प्लॉट जो प्लॉट का नया डेटाबेस है, राइट, दैट इज आल्सो बेसिकली SQLite on this, right? ठीक है, तो बहुत ही लाइटनिंग फास्ट लोकल रीड्स हो रहे हैं आपके रेप्लिकेशन सेटअप है एज के ऊपर, बात ही खत्म हो गई। सो आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग सिमिलर। देख रहा हूँ कि मैं कितनी परफॉर्मेंस निकाल सकता हूँ, बट मेरा एम है एनालिटिक्स वर्कलोड के ऊपर, क्योंकि हर चीज सिंगल DB में पॉसिबल नहीं है, तो कैन आई ऑप्टिमाइज। तो मेरा एनालिटिक्स एंड स्टोरेज लेयर के ऊपर कर रहा था, तो IO परफॉर्मेंस बॉटलनेक हो रही थी, तो एक एक करके चल। इसमें in terms of reliability, right, what are you looking at? Let's say when you're Reliability, I'm not taking of reliability. So मेरा distributed वाला एंगल सिर्फ reliability के एंगल से डाला था कि if I want to do this fast replication across my cluster, how would I do it? so you're replicating, right? So you're replicating across the cluster, across multiple machines anyway, right, over the network. So when you're doing it on a network, right, one of the things that will hit into is capturing. And Correct. you will have, right? So we have मैं नेटवर्क पार्टीशनिंग अज्यूम ही नहीं कर रहा हूँ सर, मैं भी वही इसमें चल रहा हूँ कि भाई क्या ही चांसेस है, क्या ही चांसेस है नेटवर्क पार्टीशनिंग हो जाएगा। कि नहीं, हाँ, एक्चुअली लोकल सर्वर में चल रहे तो नहीं होगा। सी इफ यू रनिंग ऑन लोकल तो नहीं होगा, बट व्हेन यू गो फ्रॉम लोकल टू actually distributed across the geography. For example, SQLite वाला जो है, if they are building it SQLite over the internet, then when you are working toward internet, then you will get in. But अगर आप ये वाला बना रहे हो, तो give me a demo, obviously कि हाँ, मैं उसी पे कन्वर्ट्स हो रहा है। अब मेरे को दिख रहा है कि कन्वर्ट्स हो रहा है, तो मेरा वो ये कि आई एम गिविंग अप ऑन नेटवर्क पार्टीशनिंग, मतलब हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसी वजह से आई एम ट्राइंग टू थिंक ओके दैट्स परफेक्टली व्हाट द मैक्स दैट आई कैन गेट। ऑब्वियसली एवरीथिंग इज अ ट्रेड ऑफ, वो निकाल के क्या बेसिस पे that's okay. As long as उसके बाद सिस्टम अवेलेबल है तो ठीक है, that's okay. See, you are not running a bank, right? नेटवर्क पार्टीशन कहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ पे यू रनिंग बैंक, जहाँ पे ट्रांजेक्शन कर रहे थे, पैसा चला गया एंड बीच में नेटवर्क पार्टीशन हो गया, तो क्या हो? एनालिटिक्स है, एक API कॉल मारा, एक डैशबोर्ड लोड होना था, डैशबोर्ड नहीं लोड, अगली बार हो जाएगा। करेक्ट। एनालिटिक्स में टाइम सीरीज एनालिटिक्स सबसे बड़ा यूज केस है। तो मैं काफी लोगों से बात किया, वो बोला कौन सा एनालिटिक्स हमारा सबसे बड़ा पेन पॉइंट है, सबका टाइम सीरीज वाला आया था कि टाइम सीरीज डेटाबेस की एनालिटिक्स में जब आपके एट्रीब्यूट्स बढ़ जाते हैं पर डेटा पॉइंट, तो टाइम सीरीज का ऊपर नीचे हो जाता है परफॉर्मेंस। सो कैन आई लेवरेज इट? तो जैसे एकदम डमी एग्जांपल दूं तो रीसेंट डेटा यूजर के पास रखो, थोड़ा सा पुराना डेटा क्लाउड पे रखो। इफ यूजर कैन गेट अ परसीव्ड परफॉर्मेंस बेनिफिट, यूजर खुश, राइट? तो नाउ द होल गेम इज आप कितने एफिशिएंट तरीके से जो रियल टाइम इंजेस्ट हुआ है डेटा, कितने जल्दी आप यूजर तक पहुंचा सकते हैं। वहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि आपको कंफ्लिक्ट आएगी क्या, मतलब टाइम सीरीज डेटा तक क्या आएगा, कंफ्लिक्ट आए ज्यादा से बढ़िया हो, कुछ डेटा पॉइंट रिपीट हो जाएंगे, कुछ डेटा नहीं आठ ले होता, वो भी आठ ले होगा, वो भी आठ ले होगा। क्या इज दैट एंड ऑफ द बर्ड? क्या वो अपने बिजनेस डिसीजन
2-3 डेटा पॉइंट इधर उधर होने से बदलने वाले नहीं तो बदल पता भी नहीं चलेगा, पता भी नहीं चला। अभी आज के नहीं चलेगा। में तो डेटा किसका मैच होता है, कोई डेटा नहीं। आज के डेट में आप चलो अभी जो डेटा बेसिस है वो भी ले लो, तो अभी किसी का डेटा मैच नहीं होता। गूगल एनालिटिक्स मैच नहीं होगा तो आपको क्या एनालिटिक्स। नहीं चलता। सो दैट बीइंग सेड, मैंने बस ये कर दिया कि एंड यूजर को गैप ना दिखे, तो मैंने बेसिकली कर्टोसिस लगा के स्मूदन आउट कर दिया कि अगर कोई एबरेशन है भी तो गायब हो जाए। ठीक है, तो यूजर को है भी तो पता नहीं चलेगा। और रीसेंट, और अगर सपोज अगर आप एक एडवर्टाइजमेंट बिजनेस का देखो, टाइम सीरीज डेटा, अगर एडवर्टाइजमेंट बिजनेस किसके देखो, वेरी हाई चांस लोगों को लास्ट 5 मिनट में क्या हुआ, लास्ट आधे घंटे में क्या हुआ, कितनी डेटा पॉइंट्स होते हैं। इफ आई डू हाई कंपरेशन और ऑन टाइम सीरीज डेटा के कंपरेशन के तो बहुत है एल्गोरिथम से, वो पकड़ के डाल भी दो, आई बेंचमार्क्ड इट, कितना 1.5 GB में तो सब खत्म हो गया। अरे 1.5 GB में क्या ही कर रहा है, 1.5 GB में तो यानी 30 मिनट का डेटा अगर मैं 1.5 GB में कंप्रेस हो रहा है, और हो गया। अगर बस मैं सीख कर पा मेरा तो काम ही खत्म हो गया ना उधर। तो हम जस्ट उसका यही चाहिए। वेरी इंटरेस्टिंग, ये मतलब एज ए प्रोडक्ट देख रहे हो एज ए ओपन सोर्स। अभी तो सर खयाली पुलाव पकाने चालू होते हैं मेरे, तो ये सर सही देखता हूँ कि यूज केस क्या निकलेगी। आई स्टार्ट विथ प्रोडक्ट, क्योंकि ओपन सोर्स में ये कि ओपन सोर्स थिंग्स आर ग्रेट, बट सिर्फ क्लाउड ऑफरिंग से पैसा नहीं बनता। और अभी तो ये है ना कि कोई भी उठा के डाल देगा, फिर क्या बचेगा। तो अनलेस यू हैव अ वेरी सॉलिड मोट, वो अभी तक मेरा बना नहीं। इफ आई हैव अ वेरी सॉलिड मोट, फिर टेंशन नहीं कि भाई मेरे को इतना ज्ञान है कि आई विल ड्राइव इट ऑन माय ओन एंड आई हैव अ लार्ज नंबर ऑफ इनसाइट्स जो अभी तक बिल्ड नहीं हुए मेरे। इफ दैट इज देयर, देन ओपन सोर्स करने में प्रॉब्लम नहीं है, बट अदरवाइज इट्स वेरी फन टू थिंक ऑफ, बिकॉज बिजनेस मेरे को समझ गया है कि बिजनेस की प्रॉब्लम एनालिटिक्स है। एनालिटिक्स को अच्छे तरीके से परसीव्ड वे में सॉल्व करते बिजनेस इसको शायद। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सही है, ऑल द बेस्ट, करते रहो आराम से एंड अपडेट करो क्या क्या बना क्या करना है। Definitely. By the way, thank you so much, Subhash. It was fab. I'm sure ये इतना डेप्थ में कोई नहीं जाता अपने ऐसे मजा। People would be loving it. And for folks who are watching, see, this is really cheating. डरो मत, everyone is thinking on cloud, but you see how easy it is. Just to, like, if you think from the right angle, if you understand that you don't need everything out there, तो तुम बहुत कुछ कर सकते हो. So just keep those things in mind. And once again, thank you so much, Subhash, for joining in. Thank you folks for watching. Sometimes we see you in the next one.